चला बाद में छोड़ देता हूँ कर दूं और ठीक है आवाज क्यों नहीं आ रही इसको दबा के देखना म्यूट कैसे मैं पीछे से प्रॉपर होना ताकि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो Oh, second class. Because it's not there, either मैं देखूंगा कौन सी चीज़ like so body slope over स्पीकर थोड़ा अपने लोग को एक्सक्यूज भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं ना तो मेरे को जाने लग जाएंगे Good afternoon to one and all present here. I am Piyush Vaksani with my co-presenters Keshav Sharma and Ankit Agarwal are going to present before you section 51 to section 59 of Income Tax Act that will cover capital gain and income from other sources. So let us start from section 51. So section 51 states that कि हमारी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट अगर अंडर नेगोशिएशन होता है फॉर सेलिंग उसके लिए अगर हमने कोई भी एडवांस अगर रिसीव करा है तो वो जो एडवांस हमने रिसीव करा होगा वो हम हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट उसमें से डिडक्ट करें तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर अंडर नेगोशिएशन फॉर सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ 100 crores एंड ए हैज रिसीव्ड 20 crores एज एडवांस सो प्रोविजन ये कहता है कि जो 20 crores हमने एडवांस रिसीव करा है तो वो 20 crores हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट हमारी 50 crores थी तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 50 crores माइनस 20 crores हमने एडवांस रिसीव करा तो हमारी कॉस्ट हो गई 30 crores बट इसका एक प्रोविजन है तो प्रोविजन ये कहता है कि हम कब हमारी जो एडवांस रिसीव है वो कब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट नहीं करेंगे तो हम तब डिडक्ट नहीं करते जब अपना जो एडवांस रिसीव्ड है वो अपन ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन 52 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 9 में उसको इनकम ट्रीट कर रखा है ऑलरेडी तो
दो चीजें हो गई, एक ये कि कब हम कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे और एक हम अगर उसको इनकम मान लेंगे। तो अगर अपन ने इनकम माना है तो उसको अपन कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपन कॉस्ट से डिडक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन इनकम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो डबल जो ट्रीटमेंट होता है एडवांस का वो नहीं होगा। या तो अपन उसको कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे या फिर उसको अपन इनकम ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9। अनुष So now let us understand section 51 from a case law. So case law was CIT versus Mira Goyal. Mira Goyal owned a property at 37 Friends Colony, New Delhi. On January 28, 2007, she entered into an agreement to sell the property to Shine Star Buildcon Private Limited for 150 crores. As a part of the agreement, she received 36 crores as earnest money through 6 checks. Earnest money as in कि हमने जो advance receive करा है. The agreement stipulated that if the purchaser failed to pay the remaining amount by 30th March 2007, the seller had the right to forfeit the earnest money. अगर जो हमारा परचेजर है वो मार्च 30, 2007 तक अगर वो अपने को पूरा अमाउंट पे नहीं करता तो जो उसने एडवांस दिया है वो हम फोरफीट कर लेंगे. So the purchaser failed to fulfill the payment obligation, leading Mira Goyal to forfeit the advance money. So the issue क्या है अब? The central question was whether the forfeited earnest money should be treated as taxable income under section 51 of income tax or which pertains to advance money received and forfeited. तो क्या होना चाहिए आप सब लोगों के साथ? तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? The Delhi court ruled in favor of Mira Goyal, holding that the forfeited earnest money was a capital received and not a taxable under section 51. The court reasoned that since the sale did not materialize, there was no transfer of capital asset and thus the forfeited amount could not be taxed as capital gain. Significance क्या हुआ इसका? As per court, this judgment clarifies that forfeited earnest money in a failed property transaction where no transfer of the capital gain occurs is considered as a capital asset and it is not subject to tax. So let's now move forward to section 54. But before moving forward, I would say that section 52 and 53 have not been covered in our presentation because they have been omitted. So let's move further to section 54. Section 54 is about profit on sale of रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. कंडीशंस क्या होती है हमारे सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन को लेने के लिए? तो सेक्शन 54 क्या कहता है कि सेक्शन 54 में होता है कि ट्रांसफर अपना सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का होना चाहिए. मतलब जो भी अपन सेल करेंगे वो अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट नहीं हो सकता. अब एग्जेम्पशंस अपन को अगर रिसीव करनी है तो उसके लिए अपन को और भी जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी विद दिस कंडीशन. तो अब व्हाट सेक्शन 54 सेज कि जो अपना एसएससी है मतलब जो भी हाउस सेल कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है. मतलब आफ्टर सेलिंग वन प्रॉपर्टी आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपकी टाइम लिमिट है कि जब आप वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या तो उससे 1 साल पहले या तो उसके 2 साल बाद तक जो आपकी टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर आपको जो न्यू हाउस है वो परचेज करना पड़ेगा टू अवेल द एग्जेम्पशन. और अगर आप न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो उसके लिए आपकी टाइम लिमिट हो जाएगी 3 years फ्रॉम द डेट यू हैव सोल्ड योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो अब अपन देखेंगे कि एग्जेम्पशन अपन को मिलेगी कैसे और कितनी मिलेगी. तो इसको अपन समझते हैं फ्रॉम एन एग्जांपल. मान लो मेरा कैपिटल गेन है ऑफ 10 करोड़. तो अगर मैं 10 करोड़ का 10 करोड़ पूरा का पूरा अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा. मान लो अगर मेरा 10 करोड़ का कैपिटल गेन है और मैंने 10 करोड़ की ही नई की प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी तो मुझे जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो पूरा का पूरा 10 करोड़ का मिल जाएगा. लेकिन अगर मान लो मेरा कैपिटल गेन था ज्यादा, मान लो 14 करोड़ का कैपिटल गेन था और मैंने उसको इन्वेस्ट केवल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में ही करा तो इसमें क्या होगा? 10 करोड़ की मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो मेरा एक्सेस है 14 में से 10 इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरा एक्सेस बचा 4 करोड़ का वो मेरा कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा. अब इसमें एक ऑप्शन भी देता है अपन को सेक्शन टू बाय 2 हाउसेस, लेकिन इसके लिए भी अपन को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है. सेक्शन ये कहता है कि अगर अपन को 2 हाउसेस परचेज करने हैं, जैसे कि पहले अपन ने पढ़ा था कि आप एक ही हाउस बाय कर सकते हो, लेकिन अगर अपन को 2 हाउसेस भी बाय करने हैं आफ्टर सेलिंग अ हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो अपना जो अगर कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से अगर कम है तो हम
दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपना जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से बढ़ता है तो अपने लिए ये कंडीशन बेकार हो जाती है और अपन सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक ये भी कंडीशन अटैच्ड है कि ये जो 2 करोड़ से कम में अपन 2 हाउसेस बाय कर सकते हैं, ये केवल एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में अपन को बेनिफिट मिलेगा। अगर आज मैंने ये बेनिफिट अवेल कर लिया तो मैं आगे कभी भी ये चीज नहीं कर सकता दोबारा। अब ट्रैक कैसे रखेंगे? अच्छा, पैन नंबर पे आ जाओ। इन्होंने ये वाला कंपनी सपोज 1 साल अवेल किया, 10 साल बाद किसी ने वापस अवेल कर लिया तो वो रिकॉर्ड में आता है। अब डिपॉजिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, फॉर एग्जांपल अपनी जो टाइम लिमिट थी इसमें क्या थी, अपन को अगर एग्जाम्पशन लेनी थी तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या थी, यहाँ तो जिस टाइम मैंने बेचा है उससे 1 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हो या फिर उससे 2 साल बाद खरीदी हो, और कंस्ट्रक्शन के लिए था 3 साल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फॉर प्रीवियस ईयर मैं ये चीज नहीं कर पाया, मतलब मान लो बिफोर फाइलिंग माई इनकम टैक्स रिटर्न मैं जो प्रोसीड्स थी मेरी जो कैपिटल गेन था उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, तो मैं मतलब मेरी अभी जो टाइम लिमिट है वो तो बची हुई है लेकिन मुझे मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो इसका मुझे एक्सेम्पशन अवेल करने के लिए एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता है विद नोटिफाइड बैंक, तो अगर मैं उसमें वो सबमिट करा दूंगा तो भी ये माना जाएगा कि जो अमाउंट मैंने सीजीएस स्कीम मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सबमिट कराया है, तो मान लेंगे कि जितना अमाउंट मैंने सबमिट कराया है वही मेरी कॉस्ट है ऑफ न्यू असेट, तो एग्जाम्पशन में वैसे अवेल करता हूं। Any capital gain not used for purchase or construction before filing the income tax return under section 139 subsection 1 must be deposited in a specified bank or institution under a government scheme. अब यूटिलाइजेशन पीरियड क्या होता है, the deposit amount must be used for purpose of construction within the prescribed time, otherwise the unutilized amount will be taxable. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टैक्स कंस्ट्रक्शन 3 साल में कराना था तो मुझे जो सीजीएस अकाउंट में अगर मैंने 3 साल के अंदर अंदर वो अमाउंट यूटिलाइज नहीं करा तो 4th ईयर में वो जो मेरा अमाउंट है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। Withdrawal rights, the SECI can withdraw unutilized amounts according to the scheme if not used within the specified time. So now let us take an illustration. So fact से इसका जवाब आप लोग लेंगे, ऐसा नहीं कि ये सीधे जवाब पे आ रहा है, ढंग से सुनिए इसको। So Mr. B, an individual sells his residential house in April 2024 for 1.80 crore. The house was purchased in May 2010 for 40 lakhs. तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है 40 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसमें मैंने इंडेक्सेशन इसलिए नहीं करा क्योंकि अपने पास इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ऑप्शन होता है कि अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधी भी ले सकते हैं और इंडेक्स करके भी ले सकते हैं, सो मैं ऐसे नॉर्मली कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना कितना हो जाएगा, मैंने 1.80 की मेरी कंसिडरेशन थी उसमें से मैंने 40 लाख की कॉस्ट हटा दी तो मेरा कैपिटल गेन आ रहा है 1.40 करोड़। अब मिस्टर बी ने क्या करा, परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन अप्रैल 2025। अब मैंने अप्रैल में एक नया हाउस परचेज कर लिया ऑफ 90 लाख, तो मेरा कैपिटल गेन कितना था 1.40 करोड़। अब मैंने उससे कम 90 लाख उतना ही केवल इन्वेस्ट करा है इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो मुझे एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा 1.40 करोड़ का या 90 लाख। तो अपन को जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो 90 लाख का मिलेगा। अब मिस्टर बी री इन्वेस्ट 90 लाख विच इज लेस देन द कैपिटल गेन, वो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन हो गया 90 लाख। टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो गया उसका, एग्जेम्प्टेड गेन है अपना जो 90 लाख अपन ने न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, और टैक्सेबल कैपिटल गेन जो होगा अपना एक्सेस होगा मतलब 50 लाख रुपीस। इफ न्यू हाउस इज सोल्ड विद इन 3 इयर्स, अब ये भी ऐसा होता है कि अगर अपन ने एग्जाम्पशन अवेल कर ली लेकिन एक अपना कैप होता है कि अपन उसको 3 इयर्स के अंदर अंदर सेल नहीं कर सकते इफ अपन को एग्जाम्पशन अवेल करनी है। लेकिन अगर आपने क्या करा कि 3 साल की जो आपकी लिमिट है उससे पहले पहले ही सेल कर दिया तो वो जो पूरी प्रोसीड्स होंगी वो अगेन टैक्सेबल हो जाएंगी। अब मान लो मैंने 90 लाख का घर खरीदा था और 90 लाख की एग्जाम्पशन ले ली, तो मेरे लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा ऑफ दैट हाउस वो नील हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरी की पूरी एग्जाम्पशन ले ली थी, तो अब मैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लूंगा नील, तो वो जो मेरी पूरी सेल प्रोसीड्स होगी नए हाउस की वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा कैपिटल गेन होता 50 लाख और मैंने 90 लाख रुपीज का घर खरीदा होता तो मेरे को एग्जाम्पशन कितने की मिलती 50 लाख की, तो मेरा जो 40 लाख होता वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होता और वो टैक्सेबल हो जाता। उस केस में मेरे हाउस का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता वो होता एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर लेते हैं अपन किसमें से अपना जो कॉस्ट होगा, तो मतलब मेरी
तो मेरी 50 करोड़ कॉस्ट मान ली है। सेकंड फर्दर एग्जांपल, सपोज इंस्टेड मिस्टर बी का कैपिटल गेन होता 1.90 करोड़ एंड ही बॉट टू हाउसेस। इस बार इसने एक नहीं दिल्ली में खरीदा 1 करोड़ का और एक खरीदा पुणे में। इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या हुआ कि अभी मैंने आगे बताया था कि जो लिमिट होती है अपन 2 करोड़ से अगर अपनी कैपिटल गेन कम है तो अपन 2 घर खरीद सकते हैं, जो कि अपन को एक ही बार मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। तो यहाँ पर जो ये है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2 करोड़ से कम है इसका कैपिटल गेन। तो सिंस कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़ एंड ही ऑप्ट्स टू इन्वेस्ट in two residential house, full exemption is allowed only in once in a lifetime. If he claims this option in financial year 24-25, he cannot claim it again in any future year. Cap on exemption. If Mr. B had purchased a house worth 12 crore, only 10 crore would be considered for example, even if full capital gain is 11 crore. अब दिस इज अनदर एग्जांपल कि अगर मान लो हमारा कैपिटल गेन ही बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो मेरा 15 करोड़ का कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट जो अपना सेक्शन है वो एक कैप लगा देता है अपर कैप कि मेरा जो आपको एग्जाम्पशन देने का लिमिट होगा वो सिर्फ होगा 10 करोड़ रुपए। अगर मान लो आपने उससे ज्यादा भी, मतलब आपका कैपिटल गेन है 15 करोड़ लेकिन और आपने 15 का 15 करोड़ पूरा री इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं तो सिर्फ आपको 10 करोड़ का ही जो है एग्जाम्पशन लूंगा। ये क्यों लाए लिमिट? कि वो बहुत बहुत ज्यादा डिडक्शन हो रहा है। फिर वो जो पर्सन एक एग्जाम्पशन की भी तो एक लिमिट होती है ना। वो 15 करोड़ में हाउस बेच रहे हो तो सरकार कह रही है कि यार कुछ हमें भी दे जाओ, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली एग्जाम्पशन की इतनी जरूरत है। तुम ऑलरेडी एक हाई रिच पर्सन हो, आप सरकार को देखते हो। ये सारे लॉजिक जो है ना, सरकार क्या करती है कि कैसे पैसे निकालने हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, 25 करोड़ 50 करोड़ भी अगर इन्वेस्ट होता था या उसमें आपके इवन दैट वाज एग्जाम, तो नाउ दे हैव कैपिटल लिमिट ऑफ इस 10 करोड़। ये भी आई थिंक बुक्स का कल ही है। यूजिंग सीएजीएस स्कीम, सीएजीएस स्कीम जो पिछले वाले सेक्शन में पढ़ने पड़ी थी विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस एज सेम। ही मस्ट डिपॉजिट, अगर इसने करंट ईयर में जो अपना कैपिटल गेन है वो अगर वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है इन बाइंग न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सीएजीएस स्कीम में उसको डिपॉजिट करा सकते हैं और एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं। और लेकिन अगर वो जो अपना पूरा टाइम है 3 साल का, उसके अंदर अंदर अगर यूटिलाइज नहीं कर पाता उस अमाउंट को, तो वो 4th ईयर में जो होगा अमाउंट अपना टैक्सेबल होगा। अपन अगर क्रक्स लेके चले सेक्शन 54 का, तो क्या होगा, आपको री इन्वेस्ट कर, आप अगर आज आपने सेल करी है तो आपको नई जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी वो कब बाय करनी होगी, यहाँ तो सेल करने से 1 साल पहले या तो उससे 2 साल बाद का, और कंस्ट्रक्शन के लिए पीरियड हो जाता है 3 साल का, तो अपन अलाउ कर देंगे। जो कैप होगी वो मैक्सिमम जो अपना इन्वेस्टमेंट की होगी, जो एग्जामिशन की होगी वो होगी 10 करोड़ रुपए। बट डिले इन यूजिंग कैपिटल गेन हो रहा है आपको, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे और आपको एग्जामिशन चाहिए, तो आप सीजीएएस में आप सबमिट करा सकते हो वो पैसा, और अगर तब भी आपने यूटिलाइज नहीं करा तो वो आपका 4th ईयर में टैक्सेबल हो जाए। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम अ केस लॉ। द केस लॉ वाज श्रीनिवास आर देसाई वर्सेस एसीआईटी। Facts say the case के assessee Srinivas R Desai sold a residential house resulting in long-term capital gain. To claim the exemption under Section 54, he purchased a new residential house within the stipulated time. In addition to the purchase price, he incurred significant expenses on interior work, including kitchen fittings, wardrobes, electrical fittings, etc., to make the house livable. The assessing officer allowed the exemption only to the extent of purchase price, excluding the interior and improvement expenses and tax the remaining capital gain. अब असेसी ने क्या करा कि जो एग्जाम्पशन ले लिया वो ले लिया पूरे अमाउंट का, मतलब जो भी उसने डेवलपमेंट कराए टू मेक द हाउस लिवेबल, वो वाला जो एक्सपेंसेस थे उसके लिए भी एग्जाम्पशन ले लिया। लेकिन जो एओ है उसने उसको डिपेंड करते हुए कहा कि नहीं, जो मैं आपको एग्जाम्पशन दूंगा वो ओनली दूंगा द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट के लिए। तो ये केस फिर गया आगे कोर्ट के पास, तो अब देखते हैं कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो कोर्ट ने ये कंक्लूजन दिया कि द ट्रिब्यूनल अलाउड द अपील इन फेवर ऑफ द असेसी। अब जो कोर्ट था, जब कोर्ट के पास ये केस गया तो कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया वो इन फेवर ऑफ द असेसी दिया। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्स थे उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो अपन ने एक्सपेंसेस फॉर बेटरमेंट ऑफ दैट हाउस करे थे वो टू मेक दैट हाउस लिवेबल थे। अगर वो नहीं होता तो आप वहां पर जो असेसी है वो वहां पर परफेक्टली रह नहीं पाता। तो इसलिए जो इसका जो कंक्लूजन निकलता है इस केस का, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि
जो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा वो होगा टोटल ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट, एंड अगर कोई डेवलपमेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग अपन ने उस हाउस में कराई है टू मेक दैट हाउस लिवेबल, तो वो भी अपन के एग्जेम्पशन में कवर्ड हो। तो देयर इज अनदर केस लॉ दैट इज अपॉन सीआईटी वर्सेस सैयद अली आदिल। तो इस बार क्या हुआ था, असेसी सैयद अली आदिल सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस एंड अर्नड अ कैपिटल गेन्स टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। असेसी परचेजेड टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसमें क्या हुआ कि असेसी ने 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब असेसी ऐसा कर सकता है क्या? तो असेसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था, यही लगा असेसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था और वंस इन अ लाइफ टाइम। So the assessing officer denied the exemption on the grounds that section 54 only states investment in a residential house property. एओ ने क्या करा, जो सेक्शन है उसको a residential house property लिखने की वजह से मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो वो क्या कह रहा था कि सेक्शन में लिखा है a residential house property, तो a मतलब आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर एसएससी ने 2 में करा है तो आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन मिलेगा। इशू आ रहा था यहाँ पर अपना कि whether the purchase of more than one residential unit qualifies for the exemption under section 50। तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 54 में अपन को ऑप्शन मिलता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपन अगर अपना कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम हो तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के। कोर्ट में क्या डिसीजन दिया, इट हैड दैट द टर्म अ रेजिडेंशियल हाउस कैन बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड मल्टीपल यूनिट्स स्पेशली इफ द फ्लैट्स आर एडजेसेंट और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। अब कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन में लिखा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको आप मिस इंटरप्रेट ना करें कि केवल वो एक ही के लिए बात कर रहा है सेक्शन, बट उसमें इंक्लूड होंगी आपकी मल्टीपल यूनिट्स में। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 54 बी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड होती क्या है। में आ रहा हूँ ये कि अगर रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट होता है ना, जैसे सपोज करो मैं को ओनर हूँ किसी प्रॉपर्टी में और मैं अपना राइट सामने वाला अपना राइट रिलिंक्विशमेंट कर देता है, तो अगर जब उसका डिफरेंशियल आता है तो वो भी 54 डेफिनेशन कवर है। तो रिलिंक्विशमेंट अगर ऑफ राइट होगा तो वो 54 में एग्जाम्पशन में एप्लीकेट कर सकते अब ये सेक्शन जो 54 बी है वो एग्रीकल्चरल लैंड किसको मानता है, ऐसा लैंड जिसपे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करा हो उस लैंड को जो इन प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर्स। मतलब अगर मैं आज सेल कर रहा हूँ मेरी लैंड और मैं उसको एज एग्रीकल्चरल लैंड क्लासिफाई करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या सेटिस्फाई करना होगा कि कम से कम 2 पिछले प्रीवियस ईयर्स के लिए मैंने वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करी हो। एग्रीकल्चरल पर्पसेस जैसे अपनी इरिगेशन हो गई, फ्लावर ग्रो कर लिए, वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, या फिर और भी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, तो वो इसमें क्लासिफाई हो जाएगी। 54 बी में अपने जो कंडीशंस होते हैं जो अपन को सेटिस्फाई करने होते हैं बिफोर अवेलिंग द एग्जाम्पशन, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलते हैं। जो भी अपन ने पहले 2 सेक्शन पढ़े 54 और जो 51 था, उन दोनों में भी यही कंडीशन थी कि जो आपका असेसी होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो एचयूएफ होना। अब असेट टाइप क्या होगा, असेट टाइप जैसे कि सेक्शन के नाम में ही लिखा हुआ है सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो जब अपनी सेक्शन एग्जेम्पशन तभी मिलेगा इस सेक्शन में अपन को जब अपना जो असेट है जो सेल हो रहा है वो एग्रीकल्चरल लैंड होगा। और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए एक लैंड का क्लासिफाई करेंगे जब अपने प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर में उसमें कोई एग्रीकल्चरल पर्पस कंडक्ट कर रहा था। अब टाइमली रीइन्वेस्टमेंट, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल मस्ट बी रीइन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 इयर्स ऑफ द सेल डेट टू क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन। अब जैसे अपना सेक्शन 54 था उसमें क्या था कि आपको अगर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करनी है तो या तो 1 साल पहले या तो 2 साल बाद तक कर सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन जो है आपका वो आप 3 साल में करा सकते हो। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेची है उसमें आपको री इन्वेस्ट आपको दोबारा कब तक करना है, मतलब बेचने के 2 साल बाद तक आप कर सकते हो, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब इसमें भी वही आ गया अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अपन को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। अगर मेरा जो कैपिटल गेन है और जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो मेरा कैपिटल गेन है 10 करोड़ रुपए और मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 8 करोड़, तो मेरा कैपिटल गेन ज्यादा है और मैंने इन्वेस्ट कम करा है, तो मुझे जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 8 करोड़। और जो मेरा एक्सेस होगा वो 2 करोड़ रुपए मेरा टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन्स।
लेकिन अगर जो मेरा कैपिटल गेन है वो कम है और इन्वेस्टमेंट मैंने ज्यादा करा है, तो मुझे जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो सिर्फ मेरे कैपिटल गेन तक की होगी। इसमें भी वही CGAS वाला सेम एप्लीकेबल होता है कि इफ कैपिटल गेन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 1, तो द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन CGAS अकाउंट। अगर अपन को प्रीवियस ईयर में अवेल करनी है एग्जाम्पशन, तो अपन ये भी कर सकते हैं। और टैक्सेशन ऑन अनयूज्ड अमाउंट की अगर अपन ने वो CGAS अकाउंट में अगर जो मेरा अमाउंट है वो 2 साल तक रह लेता है, जैसे पहले वाले के लिए 3 साल थी, अब इसमें 2 साल है, अगर मैंने 2 साल के अंदर अंदर भी CGAS से मेरा अमाउंट यूटिलाइज नहीं करा, तो मेरा थर्ड ईयर में टैक्सेबल होगा। अब अगर अपन सेक्शन का क्रक्स लेते हैं, तो क्या है एलिजिबिलिटी के लिए कौन अवेल कर सकता है? इंडिविजुअल एंड HUF। अपन को जो एग्रीकल्चर पर्पस है वो 2 साल के लिए कम से कम करे प्रीवियस ईयर में करे होने चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड पे, और जिस साल अपन ने बेचा है उससे अगले 2 साल के अंदर अंदर अपन उसको री इन्वेस्ट कर चुके होने चाहिए। CGAS स्कीम में भी अपन डाल सकते हैं अगर अपन ने री इन्वेस्ट नहीं करा है उसको। और लॉक इन पीरियड होता है कि अपन एग्जाम्पशन ले रहे हैं, जिस असेट को अपन बाय कर रहे हैं असेट एग्रीकल्चरल लैंड बेचने के बाद, उसको अपन 3 साल तक नहीं बेच सकते। प्रीवियस सेक्शन में भी यही सेम था और इसमें भी यही। अब फर्दर सेक्शन इज सेक्शन 54D कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑन कंपल्सरीली एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? कंपल्सरी एक्विजिशन टॉक्स अबाउट कि मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना है या फिर कोई उसको कोई और अंडरटेकिंग उसकी खड़ी करनी है, कोई और प्रॉपर्टी बनानी है, और उस वाली जो जगह पर आप मान लो मैं लैंड ओन करता हूँ या फिर कोई भी और लैंड ओन करता है, लेकिन गवर्नमेंट को जरूरी है कि मुझे तो वहां से हाईवे निकालना ही है, तो गवर्नमेंट क्या ऑप्शन देती है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि मुझे यहाँ से हाईवे निकालना है, तो आप जो अपनी लैंड है वो मुझे भेज दो, तो मैं उसके लिए आपको कंसिडरेशन पे कर दूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ये होता है। तो अब इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करें, तो इसमें जैसे पहले अपने लिए एप्लीकेबिलिटी थी इंडिविजुअल एंड HUF, तो इसमें कोई भी टैक्स पेयर आ सकता है, क्योंकि जो ना कंपल्सरी एक्विजिशन है वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। असेट ट्रांसफर क्या हो सकती है? इसमें लैंड हो सकती है, बिल्डिंग और एनी राइट्स जो भी है आपको ट्रांसफर कंपल्सरीली एक्वायर हो सकता है। नेचर ऑफ ट्रांसफर कंपल्सरीली एक्विजिशन कंडीशन अपनी ये है कि जिस दिन आपका कंपल्सरीली एक्विजिशन किया है गवर्नमेंट ने, उस डेट से लेकर नेक्स्ट विद इन 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको कोई और अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी या फिर कंस्ट्रक्ट करवानी पड़ेगी। एग्जेम्पशन की कंडीशंस क्या बोलती है? द असेसी मस्ट परचेज और कंस्ट्रक्ट another land building right for business re-establishment or set up another industrial undertaking within 3 years from the date of compulsory acquisition। क्योंकि जो 2 साल वाली लिमिट थी, ये जैसे पिछले एग्रीकल्चरल वाला सेक्शन पढ़ा था मैंने, उसमें था कि प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स में आपको वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करना पड़ता। इसमें ये कंडीशन है कि जो आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है इंडस्ट्रियल या बिजनेस जो भी आपकी अंडरटेकिंग है, उसमें आपने प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स में उसमें बिजनेस कंडक्ट करा उस चीज। अब इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे? ये भी वैसे ही सेम होंगे सारे सेक्शंस की तरह। अगर मेरा कैपिटल गेन ज्यादा है और मैंने इन्वेस्ट उसमें कम करा है, तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरा कैपिटल गेन कम है और मैंने इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया, तो जितना मेरा कैपिटल गेन था वो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन में ले। अब इसमें भी वही कंडीशन होती है कि कैप होता है। अगर अपन ने न्यू सेट परचेज करी है या फिर बिजनेस अंडरटेकिंग ली है, तो अपने पास एक लॉक इन पीरियड होता है कि अपन उसको 3 साल के अंदर अंदर नहीं बेच सकते। और जैसे मान लो मेरा कैपिटल गेन ज्यादा था, मेरा कैपिटल गेन आ रहा था 10 करोड़ और मैंने इन्वेस्ट करा था 8 करोड़, तो जो मेरा न्यू असेट अगर मैंने विद इन 3 इयर्स बेच दी होगी तो उसकी कॉस्ट मैं नहीं मान लूंगा, लेकिन अगर कम होगा तो वो मैं एडजस्टेड कॉस्ट। CGAS सेम एज प्रीवियस सेक्शन, इसमें भी वही है कि अगर आपने बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर ITR आपने अगर न्यू असेट परचेज नहीं कर पाए हो, तो आपको एक ऑप्शन है कि CGAS अकाउंट में आप सबमिट करा दो वो और आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। अब न्यू सेक्शन इज सेक्शन 54 EC। अब इसके पहले सेक्शन थे सेक्शन 54 E, EA एंड EB। तो उसमें जो सेक्शन बात करता था वो ट्रांसफर ऑफ इन अ पर्टिकुलर पीरियड बात करता था कि आप अगर इस पीरियड में अपना सेट ट्रांसफर करते हो तो उसका एग्जेम्पशन के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। बट अब जो अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है, उन तीनों का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया है, और पर्टिकुलरली जो पूरी बात है वो सेक्शन 54 EC बोलता है। 54 EC is about capital gain exemption on investment in specified bonds। अब इसमें जो आपका कैपिटल गेन है वो कैसे राइज होना चाहिए? आप अपनी लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों बेच के जो भी आपका कैपिटल गेन है उसकी जो आपका मतलब होगी उसको आप री इन्वेस्ट करके
एग्जाम्पशन ले सकते हो। लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पशन किसमें मिलेगी? अगर इस सेक्शन में आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है गवर्नमेंट से ही गवर्नमेंट लिस्ट करके देती है कि आप इनमें अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे अंडर दिस सेक्शन। अब इसके लिए मेरी टाइम लिमिट क्या होती है? जैसे कि पहले अपन ने देखी है कि 1 साल पहले तक या फिर 2 साल ज्यादा होगा, जो भी होगा अपने सेक्शन 54 में, और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए था विद इन 2 years। अब इसमें अपन को क्या बोलता है? इसमें अपन को बोलता है अगर आई वांट टू अवेल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, तो मेरे लिए जो टाइम लिमिट होगी वो होगी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अगर मैंने आज सेल करा है तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना होगा इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, वो होगा विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। यस, डिस्कस कर रहा है, क्यों क्या डिस्कस? अब कंडीशंस क्या है अपन को एग्जेम्पशन अवेल करने की? इन्वेस्टमेंट लिमिट, ओनली कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड। अब जितना मैंने इन्वेस्ट करा है उतना का उतना ही मेरा क्वालिफाई होगा मेरा एग्जेम्पशन के लिए। मान लो मेरा कैपिटल गेन था 10 करोड़, लेकिन मैंने इन्वेस्ट सिर्फ 4 करोड़ ही करा है, तो जो मेरी एग्जेम्पशन होगी वो 10 करोड़ पूरी नहीं होगी, जितना मैंने इन्वेस्ट करा है उतना ही होगा। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ओनली, जो अपन आगे देखेंगे कौन से होते हैं। एंड होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड ऐसे कि मुझे जो नए वाले बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइम के लिए होल्ड करने पड़ेंगे। अगर मैंने 1 अप्रैल 2018 इससे पहले जो बॉन्ड है वो परचेज कर लिए थे तो मेरी होल्डिंग पीरियड होगा 3 years। लेकिन अगर मैं 1 अप्रैल 2018 के बाद परचेज कर रहा हूँ तो मेरा होल्डिंग पीरियड हो जाएगा 5 years। अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा? अगर मैंने मेरा जितना 10 करोड़, मान लो अगर मेरा कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, तो मुझे 10 करोड़ पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने पार्शियल अमाउंट करा है, मान लो 10 करोड़ में से मैंने अगर 4 करोड़ ही करा है, तो मुझे 4 करोड़ का एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 ईस्ट। अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है? अब इसमें भी एक कैप देता है अपन को सेक्शन, या 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकते हो अंदर दिस सेक्शन। मतलब आप 50 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब मल्टीपल एसेट्स, जैसे कि बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो कंपल्शन नहीं है कि आप जो भी आपको एग्जेम्पशन चाहिए वो आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके ले पाओ। आप ग्रुपिंग करके, मतलब बहुत सारा अपना पोर्टफोलियो टाइप बना के 2-4 बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करके वो पूरा एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, इन्वेस्टमेंट कैन स्पेंड ईयर और ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्ली सेल और लॉस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पहले अपन ने देखा था कि अगर अपन ने अर्ली सेल कर दी तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो उतने से कम हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो अगर मेरे जो बॉन्ड्स थे वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड से पहले बेच दिए, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा कैपिटल गेन होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें एक और केस हो सकता है, इसमें जैसे मान लो कि मैंने कोई लोन ले लिया मेरे बॉन्ड्स को कोलैटरल लगवा के, तो ये सेक्शन जो 54 EC है वो कहता है कि जो आपने स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप एज ए सिक्योरिटी और एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखवा सकते हो, सो टेक अ लोन। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो वो भी ब्रीच ऑफ अ कंडीशन माना जाएगा और जो आपका एग्जेम्पशन था वो पूरा टैक्सेबल हो। अब इसमें है स्पेसिफाइड बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 EC कौन कौन सा आता है? जैसे आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हो गए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, अदर गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स, तो इन सब में आप अंडर 54 EC एग्जेम्पशन अवेल करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। नो डबल बेनिफिट। अब इसमें डबल बेनिफिट के लिए सेक्शन क्या बोलता है कि जैसे अगर आपने मान लो अपने जो कैपिटल गेन था उसकी एग्जेम्पशन ले ली है सेक्शन 54 EC में, तो वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 80C में डिडक्शन के लिए है ना क्वालिफाई नहीं करेगा। मतलब आपको 2 बार डिडक्शन नहीं मिल सकती। अगर आपने 54 EC में ले ली तो वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 80C में क्वालिफाई नहीं करता डिडक्शन के लिए। अब नाउ अनदर सेक्शन इज सेक्शन 54F, capital gain on transfer of certain capital assets not to be charged in case of investment in residential house। अब अपन ने सेक्शन 54 में क्या पढ़ा था? अपन सेल क्या कर रहे थे? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और अपन बाय भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे। लेकिन सेक्शन 54 क्या बोलता है? सेक्शन 54 ये बोलता है कि आप जो सेल करोगे वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस होनी चाहिए, और जो आप परचेज करोगे वो रेजिडेंशियल हाउस करोगे। तो डिफरेंस क्या हो गया? 54 में दोनों तरफ रेजिडेंशियल हाउस था, आपने बाय भी रेजिडेंशियल हाउस करा, आपने सेल भी रेजिडेंशियल हाउस करा। बट अंडर सेक्शन 54F इसमें क्या है कि आप जो सेल करोगे वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन आप जो बाय करोगे, जहां आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होती है। अब इसमें कौन कौन क्लेम कर सकता है? सेम एज सेक्शन 54, इंडिविजुअल एंड HUF। सब एप्लीकेबल एसेट्स कौन से होंगे? कैपिटल गेन मस्ट अराइज फ्रॉम
ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है अपना वो ऑलरेडी सेक्शन 54 में कवर हो चुका है. न्यू रेजिडेंशियल असेट, द एग्जेम्पशन रिक्वायर्स reinvestment in one residential house in India either by purchase or construction within designated time frames में वो सेम रहेगा. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब आपको कब तक परचेज करना है, बाय न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन 1 ईयर बिफोर, या तो सेल करने से 1 साल पहले तक या फिर उसके 2 साल बाद तक, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी वही सेम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट. वन हाउस लिमिटेशन. अब इसमें सेक्शन 54 में अपन को ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई थी कि एसएससी के पास ऑलरेडी कितने हाउस है और वो कितनी एग्जेम्पशन ले सकता है. अगर सेक्शन 54 की अगर अपन एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर मेरे पास पहले एक ही घर है या फिर 2 घर है तो तभी मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ. बट सेक्शन 54 एक्ट क्या बोलता है कि आप सेक्शन 54 एक्ट की एग्जेम्पशन तभी क्लेम कर सकते हो जब आपके पास जो एसएससी है उसके पास एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है. मतलब अगर मैं आज मेरा एक घर बेच रहा हूँ तो मेरे पास उसके अलावा सिर्फ एक ही और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी मैं एलिजिबल होऊंगा टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एक्ट. अब एग्जेम्पशन कंप्यूटेशन और अपनी क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी उसमें अपन बोलो. फुल एग्जेम्पशन ग्रांटेड इफ द एंटायर नेट कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस. अब पहले वाले जितने भी सेक्शंस थे उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन की बात हुई थी, लेकिन इसमें जो अपना सेक्शन 54 ऐप है वो बोल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है आपका नेट कंसिडरेशन का. नेट कंसिडरेशन क्या होता है, जो भी आपका सेल प्रोसीड्स है उसमें से जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं तो सेल मतलब ब्रोकरेज या फिर जो भी आपके चार्जेस हो गए उसको नेट ऑफ करके जो आपकी कंसिडरेशन होती है वो नेट कंसिडरेशन होती है. तो आपने अगर पूरी की पूरी जो आपकी नेट कंसिडरेशन है वो अगर आपने पूरी इन्वेस्ट कर दी है न्यू हाउस, आपको जो पूरा का पूरा कैपिटल गेन होगा वो एग्जाम्पल मिल जाएगा. लेकिन आपने अगर प्रोपोर्शनेटली अमाउंट कराया तो जो आपका कैपिटल गेन होगा वो भी प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मेरी नेट कंसिडरेशन थी 100 करोड़ की और मेरा जो कैपिटल गेन आ रहा था वो आ रहा था 10 करोड़ का. अगर मैं 100 करोड़ का 100 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा इन न्यू हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो जो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा वो 100 करोड़ का नहीं मिलेगा. मेरा कैपिटल गेन था 10 करोड़ का तो मुझे जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 10 करोड़ की मिलेगी. लेकिन इसकी जगह पे अगर मैंने जो इन्वेस्ट करा होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो अगर सिर्फ 4 करोड़ का ही करा होता, मतलब मान लो नेट कंसिडरेशन में से 40 करोड़ का ही करा होगा तो जो मेरा कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन होगा वो भी प्रोपोर्शनेटली होगी मुझे 4 करोड़ देंगे. अब इसमें भी वही सेम चलता है सीजीएस स्कीम की. अगर आपने अपनी जो आरओआई की फाइलिंग डेट है 139 सेक्शन 1 में अगर तब तक आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हो तो आप सीजीएस स्कीम में डिपॉजिट करा सकते हो अमाउंट. की लिमिट्स एंड समरी ऑफ सेक्शन 54 के लिए एग्जेम्पशन का होगा. तो अपन एक बार देख सेक्शन 54 एफ का तो क्या बोलता है. अभी जो 10 करोड़ की कैप थी वो अपन ने सेक्शन 54 में भी पढ़ी थी कि अगर मेरा कैपिटल गेन 15 करोड़ भी है लेकिन जो अपना सेक्शन है वो एग्जेम्पशन अपन को कहां तक ही अवेल करने देगा, सिर्फ 10 करोड़ तक का क्या है नेट कंसिडरेशन. नेट कंसिडरेशन क्या होती है, डिफाइंड एज सेल वैल्यू माइनस ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर्मिंग द बेस ऑफ एग्जेम्पशन. अब नॉन कंप्लायंस रिजल्ट्स. नॉन कंप्लायंस क्या होते हैं कि अपन को एक स्पेसिफाइड जो लॉक इन पीरियड होता है तब तक जो अपनी रीइन्वेस्टेड एसेट है वो तब तक रखनी पड़ती है, अपन उसको सेल नहीं कर सकते. लेकिन व्हाट इफ अपन ने सेल कर दी, अर्ली सेल ऑफ न्यू एसेट और एडिशनल परचेज रेंडर एग्जेम्पशन वॉइड एंड गेन्स टैक्सेबल. तो जो भी मैंने एग्जेम्पशन ली थी पहले वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी. अब अपन देख लेते हैं कि 54 और 54 एफ में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है. टाइप ऑफ ओरिजिनल एसेट सोल्ड. अपन सेल क्या कर रहे थे सेक्शन 54 में अपन ने सेल करा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन सेक्शन 54 एक्ट क्या बोलता है कि जो आपका सोल्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो असेट लॉन्ग टर्म असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए. टाइप ऑफ न्यू असेट एक्वायर्ड दोनों में सेम था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. टाइम लिमिट ऑफ न्यू परचेज. अगर अपन को परचेज के लिए लिमिट क्या थी 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सेल या फिर 2 years आफ्टर द डेट ऑफ सेल. यही सेम लिमिट अपन ने 54 एक्ट में पढ़ी. हम नंबर ऑफ हाउसेस फॉर एग्जेम्पशन. Exemption is available even if more than one house is owned. अब अभी अपन ने 54 एफ में पढ़ा था कि एसएससी के पास अगर एक हाउस से ज्यादा है, जो हाउस अपन बेच रहे हैं उसके अलावा एक हाउस से भी ज्यादा अगर ओन करता है एसएससी तो ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. लेकिन 54 में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था एसएससी के पास कितने भी हाउसेस. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द हाउस. अब जितना आप कैपिटल गेन इन्वेस्ट करोगे उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. लेकिन 54 एक्ट में क्या चलता था कि अगर नेट कंसिडरेशन आपने पूरा इन्वेस्ट करा है तो आपका जो कैपिटल गेन होगा वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा. लेकिन अगर आपने प्रोपोर्शनेट नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करी है अपनी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में तो जो आपका कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन होगा वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा.
नेक्स्ट इज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये दोनों में सेम होता है कि अगर आपने सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करने से पहले पहले अगर आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाए हो अपनी प्रोसीड्स को, तो आप सीजीएस अकाउंट में कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड क्या होगा तीनों के लिए? न्यू असेट मस्ट बी हेल्ड फॉर 3 इयर्स। जो आपकी न्यू असेट थी वो 3 इयर्स के लिए आपको होल्ड करनी पड़ती है, लेकिन अब वो अमेंड होकर क्या हो गई है अप्रैल 2019 से 2 इयर्स। न्यू असेट मस्ट बी हेल्ड फॉर 3 इयर्स इन अंडर सेक्शन 54F एग्जाम्पशन विड्रॉल। एग्जाम्पशन का विड्रॉल हो जाएगी दोनों में जो आपका लॉकिंग पीरियड था वो 3 साल था। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने जो हाउस अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है अगर वो सेल कर दी, तो जो आपका एग्जाम्पशन था टैक्सेबल हो गया। कैप ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कैप ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? अगर 15 करोड़ भी अगर मेरा कैपिटल गेन आ रहा है, तो जो मेरे कैप है अपर लिमिट है वो मुझे 10 करोड़ तक का एग्जाम्पशन देगा, वेदर इट इज सेक्शन 54 और सेक्शन 54 है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड the difference of 50 better section 54 and 54F from a case study. The case study was about Venkataraman Umar Reddy versus DCI. Facts of the case state that Mr. Venkataraman Umar Reddy, an individual, sold two distinct capital assets. तो उसने क्या करा? दो capital assets बेच दी। एक capital asset तो उसकी क्या थी? रेजिडेंशियल हाउस एंड, और एक था प्लॉट ऑफ लैंड। तो अपना जो सेक्शन 54 है वो क्या बोलता है कि केवल रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। तो जो रेजिडेंशियल हाउस वाला जो कंडीशन है 54 वाली, वो रेजिडेंशियल हाउस वाले पे लग जाएगी, और जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो मेरा कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है, तो उस पर सेक्शन 54 अप्लाई होगा। जो इसने परचेज सोल्ड करी वो इनकी असेसमेंट ईयर 2008 एंड 9, इन्वेस्टेड द एंटायर कैपिटल गेन फ्रॉम बोथ द असेट्स इन वन न्यू रेजिडेंशियल हाउस। मतलब एक हाउस खरीदने के लिए उसने अपने क्या करा? प्लॉट भी बेच दिया था और एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी वो भी बेच दी। एसएससी क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर कैपिटल गेन्स फ्रॉम द रेजिडेंशियल हाउस एंड अंडर सेक्शन 54F फॉर कैपिटल गेन्स फ्रॉम द प्लॉट ऑफ लैंड। इसमें जैसे कि 54 अपना बोलता है कि आपका रेजिडेंशियल हाउस ही सोल्ड होना चाहिए, तो 54 में उसने वो वाली एग्जाम्पशन ले ली, और जो प्लॉट था उसमें उसने सेक्शन 54F में एग्जाम्पशन ले लिया। लेकिन एओ ने क्या बोला? एओ ने डिसअलाउ कर दिया सेक्शन एंड एडेड इट टू जो 54 सेक्शन वाली जो अपनी एग्जाम्पशन थी, उसने क्या करा? वो डिसअलाउ कर दी और उसने बोला कि आप एक ही एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो, या तो 54 या तो 54F। तो उसने क्या करा? जो 54 वाली एग्जाम्पशन थी वो अपनी टोटल इनकम में ऐड कर दी। अब इशू क्या आया? कैन एन असेसी क्लेम एक्सेप्शंस अंडर both sections 54 and 54F simultaneously when the capital gains arise from the sale of two distinct assets and the entire gains are reinvested in a single new residential house. तो आप सब लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? दोनों एग्जाम्पशन मिल सकते हैं या फिर एक ही लेंगे? तो ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया? ट्रिब्यूनल ने जो अपना एसएनसी है उसके फेवर में डिसीजन दिया हैड दैट कि एग्जाम्पशन अंडर 54 फॉर द कैपिटल गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, वो तो रेजिडेंशियल हाउस के लिए आपको अलग एग्जाम्पशन मिलती है, और एग्जाम्पशन अंडर 54 है कैपिटल गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। The tribunal decided directed the AO to delete the addition, तो जो एग्जाम्पशन उसने डिसअलाउ करवा दिया था और अपनी टोटल इनकम में ऐड कर दिया था उस सेक्शन 54, तो वो एग्जाम्पशन एसएससी को अलाउ होगा। तो इट डज नॉट मीन कि अगर आप सेक्शन 54 और 54F दोनों का अगर आपका एग्जाम्पशन बनता है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर एग्जाम्पशन मिलेगा, आप दोनों में एग्जाम्पशन ले सकते हो। Implication of the ruling क्या है? This case sets the precedent that exemptions under section 54 and 54F can be claimed simultaneously when capital gains from different assets are invested in a single new residential house. मतलब अगर आपने दो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आपने अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, तो वो आपको दोनों सेक्शंस के अंदर एग्जाम्पशंस मिल जाएंगे। तो थैंक यू, दैट्स वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी क्या समझ में आया? आपका व्यूज परेशानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट से लगातार बिना सांस लिए और इतने सारे सेक्शंस इसने आपको एक्सप्लेन किए। तो जो लोग अभी रिसेंटली 2-3 क्लास अटेंड किए हैं उनको क्या समझ में आ रहा है? पहले तो ये जो बता रहा है वो सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंप्लीटली आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक टेक्निकल बात, उसके अलावा क्या समझ में आ रहा है? इसका जो एक्सप्रेशन का तरीका है वो समझ में आया या नहीं आया? हाँ, जो कॉन्फिडेंस का एक विद द कॉन्फिडेंस विच ही हैज स्पोकन,
जो भी सारे सेक्शंस हैं, और हर एक स्लाइड पे इसने कहीं पे भी रीड करके नहीं बोला ना, पूरा अपने दिमाग में सारी चीजें जमा करके और इसने बात की हर चीज पे। जैसे बीच में सेक्शंस कुछ कुछ नहीं भी है, 52 53 नहीं है, 54 डबल ई ये नहीं है, मुझे भी याद नहीं है कि वो कभी दे गया। तो द पॉइंट इज कि वो भी उसने देखे कि हाँ यार ये सेक्शन जो है वो डिलीट हो गए, तो इनको बता दो कि दीज सेक्शंस आर नॉट देयर, क्योंकि कल को वो सेक्शन 52 और 53 पढ़ने लग जाए, यार ये तो है ही नहीं। सो द पॉइंट इज कि आपकी, जब आप यहाँ बोल रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और पूरी चीजों को आपको ग्रिप करके होना चाहिए। यहाँ पे जो ये प्रेजेंटेशन है वो केवल एज ए बुलेट पॉइंट आपको सर्व करना चाहिए स्पीकर को। तो आपके जितने भी ऑडियंस हैं वो उसकी नजर जो है वो स्पीकर पे होनी चाहिए, और वो जब स्पीकर अपनी चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा तब हो, नहीं तो फिर बीच बीच में कोई ना कोई जो है वो नॉइस आती रहेगी। आज के बुक का टाइटल भी नॉइस ही है। तो वी नीड टू एक्चुअली टेक केयर इन दिस वे, क्योंकि कभी कभी आपका भी बाद में जब नंबर आएगा तो एटलीस्ट यू शुड हैव विजन कि यार हमें कैसे तैयारी करनी है। तो पहले ही बता देता हूँ, आपका नंबर आएगा उस दिन बोलूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। केसो, वी हैव केसो नाउ। I will continue with section 54G, which talks about capital gain exemption for industrial relocation. होता क्या है, जब अपन नॉन अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो उससे रिलेवेंट कोई भी असेट, तो ये एग्जाम्पशन अपने को अवेल कर सकते हैं। उसमें 3 तरीके के एसेट्स कवर किए गए हैं जो एलिजिबल है इसके अंदर, जैसे कि मशीनरी प्लांट हुआ। एक तो जरूरी है, आज जैसे दिल्ली के अंदर यमुना रिवर के अंदर, यमुना रिवर के आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रियल लैंड है ना, तो वो सारा का सारा उसका जो वेस्ट है वो रिवर में जाता है। वैसे ही अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंड विच दे हैव। तो सरकार ने ये कहा है कि साहब इस तरीके के चैलेंज को मीट करने के लिए, क्योंकि आज अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी अगर अपन टॉन्ग रोड पे जाएं तो पेरिस डालडा फैक्ट्री, जो कि बिल्कुल अब सिटी के अंदर है, किसी टाइम वो सिटी से बहुत बाहर हुआ करती थी। तो इस तरीके की जो लैंड है, क्योंकि सिटी आपकी बढ़ रही है, सो नाउ देयर कैन नॉट बी इंडस्ट्री एज सच, क्योंकि वो पॉल्यूशन होगा कुछ होगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव come out with such kind of provision कि अगर रिलोकेट हो रही है इंडस्ट्री और वापस वही इंडस्ट्री किसी और जगह लग रही है ना, बिकॉज देयर इज ए कंपल्सन कि वो इंडस्ट्री जो है सिटी में नहीं रह सकती। तो इस तरह की कैपिटल गेन एग्जम्पशंस ऑन सच इनकम होनी चाहिए if such amount is reinvested. So that is the logic. Now what are the exact provisions you will explain. पहले कैटेगरी को मशीनरी प्लांट होगी, उसी लैंड बिल्डिंग, अब लैंड बिल्डिंग को तो अपन ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो वहां पर जो अपन सेल करके निकलेंगे वो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में अपन नहीं परचेस कर सकते हैं। तीसरी राइट्स जो अपनी बिल्डिंग या लैंड में सक्सेस करती है, जैसे कि टेनेंसी राइट हुई, कोई पगड़ी की राइट हुई। अब इसमें 4 कंडीशन है, इसके अंदर अपन एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। पहले क्या, तो जब अपना ट्रांसफर हुआ है उससे 1 साल पहले अपने को असेट खरीदना है, या उसके अगले 3 साल के अंदर ट्रांसफर के खरीदना है असेट। दूसरा, अपने को अर्बन एरिया में अपन बेच के गए हैं जो प्रॉपर्टी। तो आप लोग बातें करते हुए थोड़ा सा बातें करूंगा। दूसरा, जो अपने अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी जो बेची है इमूवेबल बेसिकली, जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, उसकी जगह अपन अपने को नॉन अर्बन एरिया में परचेस करनी है दूसरी प्रॉपर्टी, अपन अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, कोई अगर गवर्नमेंट ने एलिजिबल एक्सपेंसेस बता रखे हैं, क्योंकि कुछ होती है प्रॉपर्टी जो अपन वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसकी जगह आप कुछ एक्सपेंसेस है उनमें अगर आप खर्चे कर दोगे तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अराइज होगी यहाँ पे, अगर अपना कैपिटल गेन ज्यादा आ रहा है जितना अपन ने इन्वेस्ट किया अमाउंट से, तो जो एक्सेस कैपिटल गेन है वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे कि पीयूसी पे बता रखा है वैसे। दूसरा, कैपिटल गेन अगर अपना कम है और अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ज्यादा किया है, तो जितना अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है उतने अपने वो डिडक्शन मिल जाएगी कि कैपिटल गेन अपना समझ लीजिए 10 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, अपन ने इन्वेस्टमेंट किया 15 करोड़ का, तो अपने को 10 करोड़ की एग्जम्पशन मिल जाएगी, और जो नई एसेट की जो वैल्यू होगी जो अपन ने परचेज करी है वो 5 करोड़ मानी जाएगी आने वाले टैक्सेशन पर्पज के लिए। कोई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आ गई, जैसे
अगर मैंने अमाउंट मैं asset जैसे मेरे को अर्बन एरिया में सेल करी, नॉन अर्बन एरिया में मैंने परचेज करूँ, तो मेरे को अभी तक प्लान सेट नहीं हो रहा कि मैं कैसे परचेज करूँ asset। तो मैं तो पता है कि कैपिटल अकाउंट स्कीम में यूज कर दूंगा मेरा पैसा। तो जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया है वो मेरी टीम में पोस्ट मानी जाएगी, सेक्शन में एग्जाम्पशन मानी है मेरे को। दूसरा, अगर जो मेरा समझिए 3 साल हो गए, 3 साल तक मैंने अभी तक कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, तो जो अनइन्वेस्टेड अमाउंट है उसके लिए वो मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी अराइज होगी उस साल में जब 3 साल एक्सपायर हो गए। अपन बोल रहे हैं अर्बन एरिया में ट्रांसफर करना है, तो अर्बन एरिया मतलब कोई भी एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिफाइन किया है, कोई टाउनशिप के अंदर, वो जो नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब कवर हो जाते हैं सेक्शन 54 एग्रीकल्चर। एक इलस्ट्रेशन लेता है, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड जो कि दिल्ली, जो कि अर्बन एरिया में सेटअप है, तो वहां पर उसने अपनी फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग सेल करी 1.5 करोड़ में। मान लेते हैं अगर उसको कैपिटल गेन हुआ होगा यहाँ पे 50 लाख का, तो जब वो नॉन अर्बन एरिया में, जैसे कि अपन मान लेते हैं हरियाणा में उसने सेटअप किया नया अपना बिजनेस, तो वहां पे उसने परचेज की प्लांटिंग मशीनरी 20 लाख, कंस्ट्रक्शन किया फैक्ट्री बिल्डिंग का 25 लाख में, तो रिलेटेड एक्सपेंसिव 5 लाख थे, तो टोटल इसने इन्वेस्टमेंट का इसका कैपिटल गेन था, उसने इन्वेस्ट कर दिया इसका 50 लाख। अपन ने यहाँ पे गेन 50 लाख है, तो अपने को जो एग्जाम्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी? थोड़ा पास में तो इसका ये वाला आज जब भी पूरा तो वो हाथ दिला तो जो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किए अर्बन एरियाज नॉन अर्बन में जब मैं गया, तो जो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किए वो मेरा गेन हुआ था जब मैंने अर्बन एरियाज से नॉन अर्बन में मूव किया था। तो अपने को यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी जो एग्जाम 50 लाख की मिलेगी, कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उतनी मिलेगी कितनी बराबर। अगर मैंने अगले 3 सालों के अंदर कुछ असेट को, जैसे 50 लाख है इसमें मैंने 20 लाख का असेट है, उसको आने वाले समय मैंने 25 लाख में 3 साल बाद कहीं बेच दिया है, 3 साल के अंदर भी कहीं बेच दिया, तो मैं मानूंगा कि मेरी डीम्ड कॉस्ट होगी उस असेट के लिए जो मैंने आगे जाके सेल किया है वो 20 लाख नहीं मानी जाएगी, वो 0 मानी जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से उसके ऊपर बेनिफिट अवेल कर दिया। अब एक केसेस के बारे में, सीआईटी वर्सेस मैक्स इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था, मैक्स इंडिया ने जो कि एसएससी था यहाँ पे, उसने अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मोहाली से रोपर में शिफ्ट करी थी। रोपर एक नॉन अर्बन एरिया है, तो वहां पर उसने जो मोहाली में इनके स्टैब्लिशमेंट थे वहां पर उसने लैंड बिल्डिंग अपनी बेची वहां पे, और दूसरी जो नॉन अर्बन एरिया में जब शिफ्ट हुए वो, तो वहां पे उन्होंने नई एसेट खरीदी। अब यहाँ केस इशू ये आ रहा था कि जो इसने नए एसेट्स खरीदे वो जो सेक्शन 131 की जो टाइम लिमिट होती है आईटीआर फाइल करने की, उसके बाद में करे। मतलब ये कह सकते हैं कि वेदर द असेसिंग वाज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन और वॉइस भी आती मेरे पास सिखाने आती whether the assessing was eligible for exemption under section 54G, even though some procedural aspects like delay in device filing, device status or specific timing of investment were questioned by the revenues। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आईटीआर फाइल नहीं कर रहा तो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगी इस केस में। पर यहाँ पर कोर्ट ने ऐसे कहा कि यहाँ पे इस सेक्शन को लाने का पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को प्रमोट करना जो कि नॉन अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे कहा जजमेंट में, हाई कोर्ट अपहेल्ड द असेसी क्लेम फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54G। उन्होंने फोकस किया कि आप लिबरल इंटरप्रिटेशन करो लॉ का, आप ऊपर ऊपर तुम्हें देखो क्या है, आप पर्पस लाने का पीछे, आप पर्पस कोई सेक्शन एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है तो उसका पर्पस क्या है ये सोचो आप। अपने कोर्ट ने जो टेक अवेज थे यहाँ पे था, पहला लिबरल इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया कोर्ट ने, दूसरा सब्सटेंस और फॉर्म पे। तो कहने का मतलब ये कि प्रोसीजर डिले हो जाता है आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका सरकार का कोई भी एग्जाम्पशन लेने का पर्पस है अगर वो सक्सीड हो रहा है तो जरूरी नहीं है प्रोसीजर डिले हो रहा है तो एग्जाम्पशन विथहेल्ड हो जाएगी। दूसरा केस है इंडियन मेटल्स एंड फेरोस लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इसमें क्या हुआ कि जो एसएससी था उसने इंडस्ट्रियल एसेट लोकेट जो अर्बन एरिया में थी उसने नॉन अर्बन में शिफ्ट करी, तो वो एलिजिबल था सेक्शन 54G में डिडक्शन लेने के लिए। पर यहाँ पर जो इशू आ रहा था वो ये था कि जब इसने अर्बन नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट करी अपने एसेट्स को, तो उसने जिस पर्पस के लिए वो बिजनेस सेटअप था उस पर्पस में उसको यूटिलाइज नहीं किया उस एसेट्स को, तो क्या आप उसको डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर वो स्पेसिफाइड पर्पस में काम में नहीं ले रहा हूँ एसेट्स को, मिल जाएगी। क्योंकि कोई बात आ गई कि यहाँ पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करना है लोग अपने को, फोकस ये है कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हटाना, जो नॉन कंजेस्टेड एरिया अर्बन एरिया उसको शिफ्ट करना है नॉन कंजेस्टेड नॉन अर्बन एरियाज में। तो रूलिंग भी कुछ इस तरह की थी, तो ओडिशा हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द असेसी स्टेटिंग दैट द पर्पस ऑफ सेक्शन 54G टू एनकरेज रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू लेस डेवलप्ड नॉन अर्बन एरियाज। द exemption should be denied not be denied simply because the new assets are not sold exclusively for the shifted business as long as they are part of the industrial undertaking।
Moving forward to next section, section 54G, exemption of capital gains on transfer of assets. अब यहाँ पर जैसा अपन ने अभी देखा, अपन अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे थे अपने सेट्स को, तो हो सकता है अपन डीटीए से शहर में ट्रांसफर कर रहे होंगे ऐसे, इसी के लिए सेम लगभग एग्जाम्पशन आई गई थी बाद में। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया आ सकता हो। उसका ऐसे स्लाइड पे एक बार दे, ये इसको माइक दो, एक बार पिक्चर और किसी ने पीछे पीछे स्लाइड, हम उसके बाद तक हम ये बोल रहे हैं कि आज कैंपस सेल के लिए आया गर्मी बहुत है, चालू हो गए बहुत गर्मी है सब गैप बैलेंस अपन से बात कर रहे हैं कि न्यू असेट्स आर नॉट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द शिफ्टेड बिजनेस। तो इस असेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीन यूज होता है। तो अगर मैं कार खरीद लूं, मान लीजिए 50 लाख की 1 करोड़ की मैंने कार खरीद ली आउट ऑफ कैपिटल गेन, और मैं ये बोलूं कि मेरे आने जाने में काम आ रही है फॉर बिजनेस पर्पस, उसको इंक्लूड करा जाएगा इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से प्लांट मशीनरी वो अच्छे जो अल्टीमेटली ऑपरेशंस पर काम आ रही है, ये होने लायक क्या कर रहे हैं आप एक चीज समझिए, उन्होंने क्या करा है शिफ्टेड, मतलब जो 54G के अंदर शिफ्टिंग ऑफ दी प्लांट एंड मशीनरी की बात आ रही है या इस तरीके से कोई नहीं? हाँ, तो लेकिन इस तरीके से कोई एडिशनल कार आपने परचेज कर ली 50 करोड़ की या 1 करोड़ की, 50 लाख की 1 करोड़ की, तो वो थोड़ी ना आप एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। आई डाउट investing in new plant machinery, plant building at the new location, नई लोकेशन के आरटीओ पे जाके कार रजिस्ट्रेशन करवाना, कुछ भी एक्सपोर्ट करवा ली, टैक्सेस करवा ली। आई डाउट स्टिल कोई टैक्स एक्सपोर्ट करवा होनी चाहिए क्या? नहीं, एक बार रिप्लेस वगैरह से कर दो। सेक्शन 54G में कब अपन एकदम से लेने के लिए एलिजिबल होंगे? कैपिटल गेन ओरिजिन पहला, जब अपना मशीनरी प्लांट या लैंड बिल्डिंग जो भी है उसको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, तब जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी सेल्स में होना चाहिए, जब जाके अपनी ट्रिगर होगी अपनी एग्जेम्पशन। और ये भी वही सेम टाइम फ्रेम है, जब अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे 1 साल पहले अपने को वहाँ पे इन्वेस्ट करना है सेल्स में, या उसके 3 साल बाद जब ट्रांसफर हुआ तो अपने को इन्वेस्टमेंट करना है स्पेसिफिक एसेट्स में। कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन, फर्स्ट परचेज होना चाहिए कोई भी सेल्स में, मतलब सेल आप करो डीटीए में वहां जाके परचेज कर लो। अक्वायर या बिल्ड, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी वो वहीं होगी, वो करो, या शिफ्ट कर लो असेट या एस्टेब्लिशमेंट को। अगर मूवेबल नेचर के तो वहां शिफ्ट कर सकते हो, वहां शिफ्ट लेकर वहां पे असेट को मूवेबल नेचर की जो है वहां शिफ्ट करेंगे तो भी अपने एलिजिबल हो जाएंगे। या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई एक्सपेंस है वो आप वहां पे इंकर करो सेल्स में तो हो जाएंगे एलिजिबल। टैक्स ट्रीटमेंट वही रहेगा, अगर मेरा कैपिटल गेन जो है वो अगर कम हो रहा है जितना मैंने इन्वेस्ट किया उससे, तो जो मेरा फुल कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर मेरा कैपिटल गेन ज्यादा हो रहा है और मैंने जो इन्वेस्ट की मेरी अमाउंट उस सेल्स में वो कम है, तो मेरे को कोई प्रोपोर्शनेट क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि मैं फुल जो मेरा प्रॉफिट है उसको यूटिलाइज तो करानी कैपिटल गेन के। डिपॉजिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, पहले तो ये जो अपना अनयूटिलाइज अमाउंट है जो कि अपन कोई पर्पस के लिए अलोकेट नहीं कर पाए थे, उसको 131 की टाइम लिमिट से पहले आपको इन्वेस्ट करना है सीजीडी अकाउंट में। वो अपन ने डिपॉजिट किया अमाउंट वही अपना टीम को कॉस्ट मान लिया जाएगा उस पर्पस के लिए, उस एसेट्स में करने। अगर अपन 3 साल के अंदर अपन काम नहीं ले पाए उस अमाउंट को, 3 साल के बाद वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी अपना जो बच रहा था रिमेनिंग अमाउंट होगा सीजीडी को। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देते हैं, एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दिल्ली में अर्बन एरिया में लोकेटेड है, तो उन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग सेल करी 2 करोड़ 1 जून 2024 को, और उस बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ थिंकिंग 50 लाख। मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया कोई भी इंडेक्सेशन, क्योंकि अभी अभी जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल एचएफपी एप्लीकेबल था, और ये कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसके लिए कोई इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन तो यहाँ पे मेरे इस केस में कैपिटल गेन हुआ तो 50 लाख मैंने कॉस्ट की, और जो मैंने 2 करोड़ में सेल कॉस्ट की उसमें से 1.5 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन था। अब हुआ क्या, इन्होंने अगले 3 साल के अंदर जो कि अपने को स्पेसिफाइड टाइम लिमिट थी, उसमें नई मशीन परचेज करी 60 लाख की, एक बिल्डिंग परचेज करी कंस्ट्रक्ट करी 70 लाख में, रिलोकेशन एक्सपेंस लगे 10 लाख की, तो इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट था 1.4 CR का।
तो अपना कैपिटल गेन का 1.5 करोड़ था, उसने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो 1.4 CR की थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अपने को कितने लिए एलिजिबल होंगे अपन, यहाँ पर अपने 1.4 CR तो एलिजिबल है, और जो 10 लाख का जो अपना एक्सेस कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा अपना। और अगर भाई अपन ने 3 साल में इनमें से कोई एसेट जो अपन ने इन 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है, और अगले 3 साल में अपन इनको सेल कर देते हैं, तो वही कैपिटल गेन वापस अराइज होगा, क्योंकि पर्पस तो मैट ही नहीं हुआ। 54 GB कैपिटल गेन एग्जाम्पशन और ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके प्रोसीड को कोई भी एलिजिबल कंपनी में या स्टार्टअप में कर रहा हूँ, तो मैं इस सेक्शन के लिए एलिजिबल हूँ एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे वही एलिजिबल एसेट्स ही वही होंगे जो इंडिविजुअली एक्चुअल है, कोई कंपनी कवर नहीं है इसमें। और जो मैं प्रोसीड्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब नेट कंसिडरेशन, वो मेरा एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, वो कंपनी को भी अगले 1 साल के अंदर कोई ना कोई एसेट परचेज करना है, जो न्यू एसेट्स कहता है यहाँ पर अपने सेक्शन में, वो अब आज बताऊंगा न्यू एसेट्स में क्या क्या कवर है। कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन हुई, टैक्सेबिलिटी वैसी रहेगी। मेरा कैपिटल गेन अगर ज्यादा हुआ है तो मैंने इन्वेस्ट किया अमाउंट उससे, तो अगर मेरा कैपिटल गेन ज्यादा हुआ है तो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे, तो मेरा जो प्रपोर्शन अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मेरा कैपिटल गेन है वो कम है, तो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे, तो फुल कैपिटल गेन है वो मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर सेम कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट के प्रोविजंस में भी एप्लीकेबल है, पर इसमें एक नया पॉइंट है। अगर आपने जो असेट परचेज किया कंपनी ने, जो मैंने कंपनी को इन्वेस्ट किया, मैंने कंपनी में प्रॉफिट जो मेरे थे इन्वेस्ट किए मैंने, या तो कंपनी ने आगे जाके उस असेट को बेच दिया अगले 5 सालों में, या फिर मैंने जो शेयर्स उनके ले रखे थे मैंने उन शेयर्स को अगले 5 सालों में बेच दिए, इन दोनों केस में मेरी जो एग्जाम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगी। पर यहाँ पे एक स्पेशल केस है, टेक्निकल जो स्टार्टअप्स होते हैं टेक हब, उनको यहाँ पे एलिजिबल स्टार्टअप्स बताया गया है, और वो भी तब अगर वो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अगले 5 सालों में अगर बेच देते हैं, तो वो 5 साल वाली लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे 3 साल वाली लिमिट बताएगी एलिजिबल स्टार्टअप के लिए, जो टेक स्टार्टअप्स है। ये डेट जो नॉर्मल कंपनी से एलिजिबल कंपनी उनके लिए 31 मार्च 2017 तक एप्लीकेबल थी लिमिट, और जो एलिजिबल स्टार्टअप्स है मतलब टेक हब, इनके लिए लिमिट 31 मार्च 2022 तक ही एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे एलिजिबल कंपनी में 4 कंपनियां बताई गई है। पहली, कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है किस प्रीवियस ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर में टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही है उस ईयर में, और जो कंपनी है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग एलिजिबल बिजनेस में हो, और जो मैं अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मैंने कम से कम उसके 25% शेयर होल्ड करने होने चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैं एसएमई में शेयर्स इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब दूसरा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं कोई एसएमई आईपीओ है वो आया, उसमें कोई क्यूआईबी है, ऐसा क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर, मैंने लगभग एटलीस्ट 25% शेयर उसके ले लिए, तो क्या मैं एलिजिबल होंगे स्टेटस एग्जाम्पशन में? यहाँ पर एलिजिबल कंपनी में इंडिविजुअल और एक्चुअल कवर है पहली बात, और कंपनी क्यूआईबी ये तो होती नहीं है, वो इंडिविजुअल एक्चुअल। अब यहाँ न्यू एसेट में कोई भी न्यू एसेट, जैसे अपन ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे 20% पीजीपीपी में, वैसे यहाँ पे न्यू एसेट में अपने को इन्वेस्ट करना है, जैसे अपने वहाँ पे प्रिस्क्राइब थे न्यू एसेट्स। अपने को यहाँ पे ओल्ड कोई भी एसेट नहीं होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, कोई व्हीकल नहीं होनी चाहिए, कोई अप्लायंसेस नहीं होने चाहिए, और कोई एसेट जिसके ऊपर मैंने पूरा फुल डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है प्रीवियस ईयर्स में, वो नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ पर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मल कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनके लिए एलिजिबल न्यू एसेट्स नहीं होंगी। पर अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप है तो जो टेक हब है, जो नोटिफाई किया गया है क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में, उनमें मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो कंपनी आगे जाके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पर वो कवर हो जाएगी न्यू एसेट्स की डेफिनेशन में। एक इलस्ट्रेशन है, राजेश एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसने के पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, और उसने उस हाउस को 1 अगस्त 2020 को 80 लाख में सेल किया, और उसके कैपिटल गेन आया हुआ लेट्स से 30 लाख का, और उसने उस पूरे प्रोसीड को इन्वेस्ट कर दिया एक एक्सप्रेसली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कि एलिजिबल स्टार्टअप है, और वो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले करा। और जो यहाँ पे एक्सप्रेसली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अगस्त 2021 में, और राजेश होल्ड करता है उस कंपनी में पहले से 25% शेयर्स। कंपनी परचेज न्यू प्लांट मशीनरी फॉर रुपीज 70 लाख, जो कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर मतलब 1 ईयर के अंदर कंसिडर परचेज करेंगे। तो यहाँ पर क्या राजेश एलिजिबल है क्या एग्जाम्पल मांगने में?
यहाँ पे तो यहाँ पे जो एसेट परचेज सोल्ड किया है मैंने वो 2021 में किया है, और जो एक्सवाईसी प्राइवेट लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2021-22 प्रीवियस ईयर में। तो मैंने जब एक क्या बोलते हैं एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, उसमें था मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में जिस असेसमेंट के रेस्पेक्ट में मेरा टैक्सेशन हो रहा है। पर यहाँ पर वो पहले से मतलब बाद में स्टार्टअप मेरा प्रीवियस ईयर में सोल्ड किया, उसके बाद में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो मेरा तो पर्पस नहीं था एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पशन पाने के लिए, तो यहाँ पे मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। बीच वाली करना चाहिए। ये वाली बंद कर दो। अभी अपन ने पीयूष ने समझाया था सेक्शन 54 डी वो किसके रेस्पेक्ट में था। कंपल्सरी अकाउंट तो यहाँ पर कंपल्सरी एक्विजिशन अगर मेरे को एसेट का गवर्नमेंट द्वारा होता है, उस केस में जो मेरे को आगे प्रॉफिट इन्वेस्ट करना है कोई भी सेक्शन में एग्जाम्पशन पाने के लिए, तो उसकी जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर सकता है। कहने का ये है कि जब मेरे को उनके द्वारा जो कंपनसेशन रिसीव होएगा उस दिन से मैं मेरी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उस दिन से मैं कंसिडर करूंगा, तो मतलब ये है कि उन्होंने एक बेनिफिट दिया है क्योंकि इनकी तरफ से डिले हो रहा है कंपनसेशन देने में अपने को। सेक्शन 54 एक्ट अप्लाइज नॉट विद स्टैंडिंग मतलब ये ओवरराइडिंग प्रोविजन हो गया 54 54 बी 54 डी 54 ईसी एंड 54 एफ के ऊपर। और यहाँ पे एक्सटेंशन पाने के लिए तो एक्सटेंशन टाइम लिमिट इज द पीरियड टू अक्वायर अ न्यू एसेट और डिपॉजिट कैपिटल गेन स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो ये चार्जिंग सेक्शन का भी एक क्या बोलते हैं प्रोविजन हो गया। नाउ I will begin with section 55 understanding adjusted cost of improvement and cost of acquisition. First, cost of acquisition in case of intangible and financial assets. For intangible assets, if they are purchased, then जो एक्चुअल परचेज प्राइस आपने पे की है वो होगी। अगर वो अक्वायर हुए इनहेरिटेंस से मतलब सेक्शन 49(1) के स्पेसिफाइड मोड्स के थ्रू आपने अक्वायर किया उनको, तो जो परचेज प्राइस प्रीवियस ओनर की थी वही मेरी कॉस्ट मानी जाएगी। और किसी केस में अपने को इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नीली मानी जाती है, जैसे कि कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी मैं वैल्यू एसेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नीली मानते हैं। अगर if depreciation claimed on goodwill before assessment year 21-22, तो assessment year 21-22 में अपने को goodwill के ऊपर depreciation मिलना बंद हो गया था। उससे पहले की अगर अपनी कोई goodwill परचेज goodwill बेसिकली एक्सेस करी अपने बैलेंस शीट में, तो अपन उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे वो 21-22 तक जो अपना डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसको माइनस करके नेट ऑफ करके दिखाएंगे, वो वही अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। मतलब अकाउंट्स में चलती रहेगी जो प्राइस है डेप्रिसिएशन की मतलब अमोर्टाइजेशन करके, पर यहाँ पर वही प्राइस मानी जाएगी जो असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2021 तक जो मेरा डेप्रिसिएशन बनता था उतने को मैं नेट ऑफ कर सकता हूँ मेरी कॉस्ट से। फाइनेंशियल एसेट्स के केस में अगर मेरे को बोनस शेयर मिला है तो उसकी कॉस्ट नील होगी। पर मेरा एक सवाल है, अगर मेरे को कोई बोनस शेयर मिले थे जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले थे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? राइट शेयर्स, अगर मैंने कोई राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कोई अमाउंट पे किया है तो वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अगर मैंने कोई रिनर्स कर दी राइट जो मेरे को मिली थी उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। अगर मैंने कोई परचेज की हुई राइट आगे किसको बेच रहा हूँ तो जो मैं प्रोसेस से कलेक्ट कर रहा हूँ प्लस कोई प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूँ वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सामने वाले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ शेयर्स एंड डीम्यूचुअलाइजेशन होता क्या है डीम्यूचुअलाइजेशन, अगर कोई एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एनएससी थी कभी एनएससी भी नॉन कॉर्पोरेट रही होगी नॉन प्रॉफिट एंटिटी रही होगी, तो जब उसने कन्वर्ट हुई एज अ पब्लिक एंटिटी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिकली वर्ड है। तो अगर कोई कॉस्ट अपने को शेयर अलॉट होते हैं सेबी की अप्रूव्ड स्कीम में, जब अपन ये डीम्यूचुअलाइजेशन के दौरान मिलते होंगे एनएससी या बीएससी कोई शेयर्स मिलते होंगे, उसकी जो कॉस्ट है वो वही मानी जाएगी जो मेंबरशिप के लिए उन्होंने कॉस्ट पे करी है आगे जाके सेबी को वही मानी जाएगी कॉस्ट। और अगर कोई ट्रेडिंग या क्लियरिंग राइट मिल रही है, जैसे कि अब मेरे को ट्रेडिंग करने की राइट मिल रही है, पहले जो थे ट्रेडिंग वो एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में हो रहा था, पर अब जो मेरा जो स्कोप है वो बढ़ चुका है ट्रेडिंग का, तो उस जो कॉस्ट है उस ट्रेडिंग की वो अपन ये नहीं मानेंगे अलग से कोई कॉस्ट है, वो जो मेंबरशिप के लिए कॉस्ट पे करी है अपन उसी में सक्षम मानेंगे, वो कॉस्ट नहीं मतलब नील मानेंगे वो कॉस्ट। अगर जो दो साइड्स में कैपिटल एसेट बताया उसके अलावा कोई अगर कैपिटल एसेट है
वो अगर ट्रांसफर हो रहा है अप्रैल 1 2001 से पहले, या तो असेसी ने किया है ट्रांसफर या प्रीवियस उन्होंने किया है, या फिर मैंने खरीद लिया था पर मैंने मेरे बाद में किसी ने सेक्शन 49(1) की मोड्स के थ्रू ट्रांसफर किया है उस केस में, तो पहला केस है अदर देन लैंड और बिल्डिंग का। अगर मतलब लैंड बिल्डिंग के अलावा अगर कोई मैंने कैपिटल सेट है उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट असेसी के लिए थी, जो उसने एक्चुअल पे किया था वो माना जाएगा, ये जो प्रीवियस ओनर था उसका उसने जो कॉस्ट पे करी थी वो मानी जाएगी। या फिर अगर अपने को अवेलेबल नहीं है तो अपन जो फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल थी अप्रैल 1 2001 के दिन वो अपन मान लेंगे हमारी कॉस्ट को, जो इन दोनों से हायर होगा, दोनों अपने पास अवेलेबल है तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अपनी कॉस्ट मानेंगे। केस 2 लैंड और बिल्डिंग में, अब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट जो एसएससी को लगी थी बियर करा था उसने वो मानी जाएगी, या फिर जो प्रीवियस ने बियर करी थी वो मानी जाएगी। अब यहाँ पे वो एसडीवी का केस आ जाता है, क्योंकि अपन ने पहले सेक्शन 43 में पढ़ा था कि ये जब कॉस्ट मानते हैं मेरी वो मानते हैं एसडीवी, या फिर अगर मतलब एसडीवी से 10% ज्यादा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो एसडीवी में जो कॉस्ट हो जाती है, नहीं तो वो एक्चुअल कॉस्ट जो रहती है वो रहती है। सेम यहाँ पर भी इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मेरे को मानना है इस केस में भी तो वही इन्होंने कंसिडर किया है, एसडीपी या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो अप्रैल 2001 की थी उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो माना जाएगा। अगर मेरे को सेक्शन 112 ए के पर्पज से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है जो सेम बोनस टैक्स के केस में भी एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो बनता है टिपिकल सा। अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मेरी थी या फिर जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल थी अप्रैल 2001 के केस में, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो, या फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू Jan 31 2018 के दिन थी, या फिर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन जो मैंने पे करी थी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। और इन दोनों फिगर्स को अपन कंसिडर करेंगे, अगर इन दोनों में से कोई हायर फिगर जो है उसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, मतलब ये इन्हीं का बेनिफिट हो रहा है इनकम टैक्स वालों का, अपना कोई बेनिफिट नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन अदर स्पेशल केसेस, अगर कोई शेयर था जो 31 जनवरी 18 को लिस्टेड नहीं था, मतलब मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू एसेटेनेबल नहीं थी उस दिन, पर उसके बाद में जब मैंने ट्रांसफर किया उस समय तक वो लिस्ट हो चुका था, तो अपन इस केस में एक्विजिशन की कॉस्ट निकालेंगे ऐसे कि जो मैंने एक्चुअल कंसिडरेशन पे करी थी उसको उस शेयर को एक्वायर करने के लिए उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा सीआईआई से जो 2017-18 का है, और उसको डिवाइड करूंगा जो मेरा मैंने पहली बार ऐसे असेसी हेल्ड किया उस असेट को, या फिर 2001 या 2, मतलब अगर मैंने 2001-2 से पहले का अगर कोई असेट है उसको मैंने खरीदा है और मैं 18 के बाद में बेच रहा हूँ उसको, तो यहाँ पर विच लेटर वाला केस एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा लिक्विडेशन एंड शेयर कैपिटल चेंजेस, जब मैंने उस असेट को ट्रांसफर किया फॉर द लिक्विडेशन पर्पस, तो उस दिन जब फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन के डेट के दिन वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी जो सामने वाले ले रहा है उसके लिए अनएसेटेबल प्रीवियस ओनर कॉस्ट। अगर कोई प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मेरे को एसेटेबल नहीं है तो अपन वो कॉस्ट मानेंगे जो फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल थी अप्रैल 2001 के दिन। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिस्टेड शेयर है उसमें जो 31 जैन 2018 के दिन कोई शेयर लिस्ट था, मतलब ट्रेडिंग हुई थी उसकी, तो उस दिन उसकी हाईएस्ट जो प्राइस चल रही है करने से स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएसई और बीएसई दोनों में से किसी भी हाईएस्ट प्राइस चल रही है वो अपन कंसिडर करेंगे। अगर उस दिन कोई उसकी ट्रेडिंग फॉल्ट हो रही थी तो उससे पहले जो प्रीवियस ट्रेडिंग देखा उस दिन की अपन प्राइस कंसिडर करेंगे हाईएस्ट रेटेड प्राइस। अगर कोई अनलिस्टेड यूनिट है तो उसकी अपन एनईवी कंसिडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एंड 49 गुडविल और इंटेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मानते हैं फिक्शनल होता है, कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता कोई भी गुडविल में। अदर कैपिटल एसेट, अगर मैंने कोई एसेट अप्रैल 1 2001 से पहले परचेस किया था और उससे पहले मैंने परचेस किया पर आज मैं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ उसमें अप्रैल 1 2001 के बाद में, तो उसी को ही कंसिडर किया जाएगा हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, मतलब अप्रैल 1 2001 से पहले मैंने कोई इंप्रूवमेंट किया तो उसको नील माना जाएगा। अगर मैंने असेट परचेस किया अप्रैल 2001 के बाद में तो उसके बाद में जो भी मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है मैंने वही मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड होगा। एक्सक्लूजन, अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन किसी और हेड में ले रहा हूँ तो यहाँ पर उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सीआईटी वर्सेस मैसेज पेविलियन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो कंपनी है उसने प्रॉपर्टी अपनी जो पेविल हाउस थी उसकी खुद की जो बिल्डिंग थी उसने 33 करोड़ में सेल करी असेसमेंट ईयर 7-8 में। कंपनी हैड बीन इन्वॉल्व इन शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स, अब शेयर होल्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए उसने जो अलग से कंसिडरेशन पे किया, बात कर रहा है बात जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर इस असेट को जब अपन ने बेचा तो उस केस में शेयर होल्डर्स की डिस्प्यूट अराइज हुई, तो उसको सेटल करने के लिए मैंने कुछ कंसिडरेशन पे किया 3 शेयर होल्डर्स को जो कि था 31.05 करोड़ का।
the company claimed this amount as cost of improvement under section 55(1)(b) of the Income Tax Act 1961 while computing LTC to। तो यहाँ पे लीगल इशू, दो इशू अराइज हो रहे थे। पहला तो ये था जो मैंने पेमेंट किया शेयर होल्डर्स को उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, क्या वो एलिजिबल होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में? नहीं होगा, क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं थी सेट के रेस्पेक्ट में। दूसरा इशू था कि जो सीआईटी रिविजनरी पावर एक्सरसाइज कर सकती है 263 सेक्शन के अंडर में। अब जैसे इसका ब्रीफ देना चाहूंगा, इसको आगे जाके कोई ना कोई सेटल क्लास में कवर होगा। अगर मैंने कोई डिमांड, मेरा अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर रेज हुआ है और मैं उसके अगेंस्ट में कोई अपील में जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कोई डिमांड ऑर्डर आया था, उसमें 5 पॉइंट्स थे, वो स्पेसिफाई थे जिसके अगेंस्ट में मेरे ऊपर डिमांड रेज हुई थी। हम उनमें से मैं कोई भी 2 पॉइंट लेकर सामने अपील में जाना चाहता हूँ, तो उस दौरान अगर कोई रिविजनरी अथॉरिटी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जो उस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहती है, तो वो उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले से अपील में चल रहा है। पर कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंदर अगर आप कोई केस अपील में चल रहा है उसको आप जब भी रिवाइज कर सकते हो। तो वो जब होता है जब कोई जो इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है उसके प्रीजुडिशियल या फिर उसके एरनियस, अगर उनको लगता है डिपार्टमेंट को कि ये हमारे रेवेन्यू के खिलाफ जा रहा है मामला, तो वो कर सकते हैं, इस केस में रिविजन कर सकते हैं उस ऑर्डर का जो जिसकी अपील अभी चल रही है। तो कोर्ट के एनालिसिस में फाइंडिंग थी, cost of improvement में उन्होंने ये रूलिंग दी, the Supreme Court observed that the payments made to shareholder were not for enhancing or altering the capital asset payable house, but were to settle the disputes. Therefore, such payments do not qualify as cost of improvement under section 55(1)(b). और जो रिविजनरी पावर एक्सरसाइज की थी सीआईटी ने, उसके ऊपर ये रूलिंग की। The court referred to its earlier decision in Malabar Industrial Company Limited versus CIT, emphasizing that the CIT can exercise such powers under section 263 if the AO's order is erroneous and prejudicial to the interest of the revenue. Now, section 55A reference to the valuation officer. तो कभी अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कोई प्राइस, कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको अनरियलिस्टिक लगती है, तो वो उस कॉस्ट को वो रेफर कर सकता है आगे वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए, वैल्यूएशन ऑफिसर को। और वैल्यूएशन ऑफिसर इन्हीं का ही डिपार्टमेंट का कोई बंदा होता है जो वहां बैठा होता है। तो यहाँ पे 2 इंसान होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर है और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो अलग है, और डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही वर्क करता है। तो कब कब जो वैल्यूएशन है जो असेसिंग ऑफिसर को अनरियलिस्टिक लग रही है, वो कब रिफर कर सकता है आगे? पहला केस, अगर इफ द एसेट वैल्यू क्लेम्ड बाय द असेसी मैच द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एस्टीमेट, अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के एस्टीमेट को तो मैच कर रही है, जिस एसेट पे मैंने ट्रांसफर किया एसेट को, उसको तो मैच कर रही है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऑफिसर को। पर जब भी एओ को ऐसा लगता है कि ये जो वैल्यू है ये फेयर मार्केट वैल्यू से तो अलग हो सकती है, तो तभी रिफर कर सकते हैं आगे। अगर फेयर सेकंड केस, द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स द क्लेम्ड वैल्यू बाय प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज और अमाउंट, आगे में प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज नहीं बताई गई है। और सेकंड केस, इफ द नेचर ऑफ द एसेट और देयर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर करती वैल्यूएशन, अगर एओ को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफर है इस नेचर का है कि इसकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, तो वो रिफर कर सकते हैं आगे सेक्शन 55A के थ्रू। अब एओ जो इस प्रोविजन सेक्शन 55A में पावर बताई गई है, इनको इन 2 केसेस में काम में ले सकता है। एक तो सेक्शन 50C जो अपन ने पहले सैटरडे क्लास में देखा था, जो 10% वाला काम, और सेक्शन 152A जिसमें असेसमेंट रीअसेसमेंट होता है। तो इन दोनों केसेस में सेक्शन 55A के थ्रू ऑर्डर पास हो सकता है। केस स्टडी संगीता चंद्रकांत पटेल वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। This case decided by the IT80 Ahmedabad on September 23, 2009 concerns the applicability of section 55A of the Income Tax Act. It focuses on determining the fair market value for capital gains computation in sale of land plots in Vijalpur, Ahmedabad. अब हुआ क्या है यहाँ पे, असेसिंग ने सेल कंसिडरेशन रिसीव कर ली 61.52 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके, और उसमें उसको कैपिटल गेन हो रहा था 10.32 CR का। असेसिंग ऑफिसर ने उस केस को रेफर किया डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को कि आप इसकी रिकम्पिटेशन करो कैपिटल गेन। अब यहाँ पे सेक्शन 55, अभी अपन ने देखा सेक्शन 52, 53 अमिट हो चुके हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 52, 53 का रेफरेंस लिया था जो सामने एओ था उसने। तो द मेन इशू वाज वेदर द एओ हैड द डिस्क्रिप्शन टू रेफर द केस टू डीबीओ अंडर सेक्शन 55A। तो असेसी ने इस चीज का आर्गुमेंट उठाया कि आपने सेक्शन 52 का रेफरेंस दिया जो आपने हमको डिमांड ऑर्डर किया, पर इसके ये सेक्शन तो पहले से अमिट हो रखा है, तो इसका रेफरेंस देना तो इनवैलिड था। तो वैल्यूएशन कंसर्न से एसएससी चैनल से डीबीओस वैल्यूएशन एस आर्बिट्रेरी, मतलब उनको बताया कि आप ऐसे असम्पशन ले रहे हो कुछ भी। एक आपने कोई भी अमाउंट
क्या बोलते हैं रेट प्रिस्क्राइब कर दिया, इसकी 45,000 पर स्क्वायर मीटर हम चार्ज करेंगे, जो कि अनरियलिस्टिक थी। The tribunal observation sees the tribunal stress that the references to the DBO should be judicious and not arbitrary. It highlighted the legislative intent in omitting section 52. अब section 52 वैसे तो omit हो चुका, और उसके उसमें section 52 ये कहता था कि आप सेल कंसिडरेशन कर कोई भी आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, उसकी जो वैल्यू होगी, उसके ऊपर टैक्स सेल प्रोसेस होगी, वो होगी। यहाँ सेक्शन 52 बोलता था आप उसकी जगह फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो, तो पर अभी सेक्शन अमिट हो चुका था, बट ट्रिब्यूनल ने इस वजह से एओ को बताया कि आप ये जो सेक्शन अमिट हो चुका, आप इसका रेफरेंस आप कैसे ले रहे हो। ट्रिब्यूनल रूलिंग the ITAT ruled in the favor of the assessee, stating that AO's reference to the DBO under section 55A was unwarranted. तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंटेंट हिट हो रहा था, इस वजह से ये जो केस था, इसका जो ऑर्डर पास हुआ वो एसएससी के फेवर में पास हुआ। थैंक यू। सर है IFOS, उससे अपनी जो भी इनकम मतलब ये सारे हेड्स में कवर नहीं होते, वो अपनी कवर होती है IFOS हेड के अंदर, जो पीडी में कवर नहीं होती, कैपिटल गेन में कवर नहीं होती, या फिर सैलरी हेड वगैरह कवर नहीं। तो इसमें फर्स्ट है डिविडेंड इनकम्स। डिविडेंड इनकम अपनी हमेशा IFOS हेड में कवर होती है, क्योंकि ये इनकम अपनी क्या होती है, उससे मिलती है शेयर्स को कुछ परसेंटेज डिविडेंड देते हैं, तो सेल्स हो I was being dividend. Filter towards section 222A to 222F. First है distribution of accumulated profits. अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे मान लो मनी के फॉर्म में करते हैं तो डायरेक्टली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर, या फिर करती है कि शेयर के फॉर्म में किसी एसेट के फॉर्म में, तो कि फेयर मार्केट वैल्यू सर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, वो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स। अगर कंपनी डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवेंचर स्टॉक करती है, सर्टिफिकेट करती है, तो वो भी इनका टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर ही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन के केस में अगर कंपनी खुद में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो भी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल कंपनी अपनी रिड्यूस करती है और तब तो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सो वो भी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये डिविडेंड केवल पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश है, उसकी बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 222 के अंदर भी अगर आप कोई डिविडेंड में फॉलो हो तो आप भी आ गया। उसके अलावा अगर कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसको एज ए डिविडेंड ही टैक्स कर रहा है। देयर आर अदर आइटम टैक्स जहाँ पे इस तरीके से डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जैसे आप डिविडेंड आप पेमेंट कर रहे हो तो कुछ टीडीएस भी काटना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने जो भी सेक्शन 22E की कंडीशन है 222E, और कंपनी ने किसी को पेमेंट करते हुए वो पहले से कर दिया या पेमेंट ऐसा किया कि वो अल्टीमेटली इट्स लाइक ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर सेक्शन 222E, तभी आपको टैक्स का ध्यान रखना है और उसकी टैक्सेबिलिटी फिर आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ पे आती है। तो अभी मैं कवर करने सेक्शन 222E जो सर बता रहे थे, लोन्स एंड एडवांसेस एज डीम्ड टू लोन्स टू सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। अगर कोई शेयर होल्डर है जो कंपनी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है 10% ऑफ लोन, तो कंपनी उसको कोई लोन देती है तो उसको डिविडेंड पेड करेंगे। अब एक लोन्स टू स्पेसिफाइड कंसर्न, अगर कोई कंपनी किसी कंसर्न पर लोन देती है HUF, BOI, AOP को, तो उसमें कोई शेयर होल्डर है कंपनी का जो 10% होल्ड करता है और वो कंसर्न के अंदर के अंदर भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दैट इज 20% ओन करता है, तो उसको भी डिविडेंड मानेंगे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कुशल हेलो, क्या इशू बात क्यों कर रहे हो? देख रहा हूँ तुमको। चलो बैठ जाओ। मैं बात कर रहा हूँ, तू कह रहा नहीं कर रहा हूँ। Buyback of shares by domestic company under section 222 है, ये फाइनेंस एक्ट 24 पर प्रतिबंधित हो गया।
Before 1st October 24 and after 1st October 24 दो अरेंजमेंट्स लिए। Before 1st October 24 अगर कंपनी बायबैक करेगी शेयर का कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा एट द इनकम टैक्स ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस एट द रेट 20% इट इज एक्टिवली 22.6%। कंपनी को टैक्स होगा अगस्त 115 के अंदर पर वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जाम होगा मैं सबसे 1034 करूं। लेकिन अगर वो बायबैक हो रहा है 1 अक्टूबर 24 के बाद तो वो इसको ऐसा डिक्लेयर करेंगे कंपनी के को सक्सेसफुल नहीं है तो पूरा पैसा मिलेगा वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एक्सेबल है। हमने बात इसका एग्जांपल भी है कि ओ लिमिटेड कंपनी में यूजर की बाय करता है 100 शेयर एट द रेट 40%, मतलब टोटल ग्रॉस इक्विटी आता है 4000 रुपए। अब कंपनी बायबैक कर लेती है 1 नवंबर 24 को 20 शेयर एट द रेट 60 पर शेयर, तो फिर इसके अंदर 1200 रुपए का जो पैसा आ रहा है वो डीइवेंट होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन ये डीइवेंट हो रहा है तो इसकी सेल कंसीडरेशन नहीं हो जाएगी फॉर द शेयर होल्डर, तो फिर इसमें अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा 800 रुपए का। तो फिर वो लॉस आने से फ्यूचर में कभी वो शेयर होल्ड करेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का फायदा वो ले सकता है तो गेन आउट सेटअप करने के लिए। जैसे कि इस केस के अंदर मिस्टर बी ने दिसंबर 25 के अंदर 50 शेयर छोड़ लिए तो उसको 70 में सोल्ड कर रहा है 50 शेयर अपने 40 की बाई थी तो 1500 का गेन होगा। लेकिन जब पहले का 800 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस करा था तो उसका गेन आएगा 15 को माइनस 800 दैट इज 700 रुपए। अगर कोई कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देती है जैसे कि पेड एडवांसेस टाइप तो वो इसमें कवर नहीं होंगे। और से अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी की बैंकिंग कंसर्न जिसका काम ही लोन देना नहीं है तो वो कवर नहीं होंगे। सेटअप अगेंस्ट करें अगर मैंने अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने मेरे लोन से एडवांसेस दिया मैंने डिविडेंड क्लियर कर लिया तो बाद में अगर वही शेयर उसी शेयर होल्डर कंपनी देती है डिविडेंड तो वो डिविडेंड कंपनी सेटअप कर लेती है अगेंस्ट द लोन, मतलब कि उस शेयर होल्डर कंपनी डिविडेंड देगी है उसका सेटअप है लोन में। अब जो डिविडेंड दिया उसको अपन डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे उसको डिविडेंड भी ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनी ने सेटअप कर दिया इसलिए। और दोनों शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मानेंगे। पर इसमें इंपॉर्टेंट नोट भी जो अगर मान लो कि शेयर होल्डर ने रीपेमेंट कर दिया वैसे खुद से या फिर अपन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो भी एप्लीकेबल है फर्क नहीं करेगा 222 ई उसके अंदर केस में प्रदीप वन मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी। प्रदीप तुम्हारे सबसे शेयर होल्डर थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उन दोनों ने अपनी इनवॉइस प्रॉपर्टी कंपनी को दी और मंजूर है। तो 1987 में कंपनी ने वो जो प्रॉपर्टी थी ना जो नीचे बैंक को मॉर्गेज करने के लिए दो दी। अब 1987 में कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया कि एप्लीकेंट जब चाहे तक इंटरेस्ट में डिपॉजिट ले सकता है अप टू ₹50 लाख फ्रॉम द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल ईयर 1997 to 98 रेलेवेंट टू AY 1990 to 99 एप्लीकेंट क्या करता है कि कंपनी को बोलता है कि आप सब परचेज कर लो या मॉर्गेज से यूज कर दो लेकिन मुझे मेरे सन के एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए और पैसा चाहिए। तो कंपनी अटेम्प्ट करती है रिलीज करवाने का लेकिन रिलीज नहीं करवा पाती क्योंकि बैंक बोलता है कि दूसरे लोग आपको मॉर्गेज करवानी पड़ेगी अगर पहले प्रॉपर्टी रिलीज करवानी है तो इसलिए कंपनी एडवांस कर देती है 10 lakhs to the appellant which was addressed against the rent payable to। तो इसमें क्वेश्चन है कि क्या अपन इसको डीम डिविडेंड ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे। कौन बनाएगा भाई तू बता दे क्वेश्चन कह रहा है हैं? नहीं ये डीम डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा क्योंकि ऐसे है तो ध्यान रखो ये हाँ तो प्रॉपर डीम डिविडेंड ट्रीट देगा क्योंकि ये एडवांस बस है इसलिए बट बस मैं प्लीज बिलो इंटरेस्ट the mortgage is available like you to mortgages property to secure a monthly company benefit। कंपनी ने अपने बेनिफिट से लोन दिया है शेयरहोल्डर को बेनिफिट नहीं मतलब आप मेरी प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज से छुड़ा दो रिलीज करवा दो मैं सेल करके सेल एजुकेशन को अफोर्ड कर दूंगा तो ये कंपनी की फायदे के लिए है ना कि शेयरहोल्डर के फायदे के लिए। तो इधर द कोर्ट डिस्टिंग्विश दिस केस फ्रॉम अदर्स वेयर एडवांस वन में सोल्यूट फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ शेयरहोल्डर इट हैड बाय द एडवांस ऑफ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस and was not in the nature of loan or advance as contemplated under section 222. Therefore, the amount could not be treated as dividend. अब accumulated profit आ रहा है कि हर में ऐसा to the extent of accumulated profit. Accumulated profit कंपनी के सारे profit, reserve and surplus, security premium, reserve वगैरह। पर इसमें exclusion होगा building and machinery depreciation पर not to be included in accumulated profit। उसमें केस स्टडी भी है CIT वर्सेस जंगू रामा राव 1983। पर अगर लिक्विडेशन केस होगा तो भी सारे प्रॉफिट कवर होते हैं
but when liquidation is consequent to the compulsory acquisition of an undertaking by the government. अगर liquidation होता है गवर्नमेंट के compulsory acquisition पे तो अपन preceding 3 years के प्रॉफिट को accumulated प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं. Trade advances not taking as deemed advances. The CBDT clarified that trade advances in the nature of commercial transaction do not fall within the ambit of 222E. This is job work advance. अब अगर मैंने मेरी सिस्टर कंसर्न को एडवांस दिया और वो सिस्टर कंसर्न ने जॉब वर्क करके उसको एडजस्ट कर दिया तो वो क्या है मेरा उससे बिजनेस है डीलिंग करना है मैं उसको ट्रेड एडवांस दूंगा वो लोग मेरे को वर्क करके देंगे और वो सेट ऑफ हो जाएगा इसको ट्रीट नहीं होगा. प्लान इंस्टॉलेशन एडवांस अपन ने बढ़ा था अभी एक शेयर होल्डर को क्या बोलते शेयर होल्डर ने अपना प्लान दे दिया और उसके बदले में उन्होंने उसको पैसे दे दिया तो वो भी ऐसा डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा. कैजुअल इनकम जैसे ड्रीम 11 जो आपके बहुत पॉपुलर हो चुका है आप शुरू खेलते होंगे शायद ड्रीम 11 विनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस लॉटरी गैम्बलिंग केबीसी वगैरह ये सब इनकम होती है ये फ्लैट 30% टैक्सेबल होती है और इनमें कोई बेसिक एग्जीक्यूटिव का बेनिफिट नहीं मिलता चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलता. अगर आप केबीसी खेलने के लिए मुंबई जा रहे हो जयपुर में रह रहे हो तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा कि पता तो कोई एक्सपेंस है कुछ किसका बेनिफिट नहीं मिलता 100% टैक्सेबल होगी. अब इसके ऊपर जो केस स्टडी है मंजू एंड कंपनी एक होलसेल क्या बोला लेकिन मतलब ये अगर आप केबीसी खेलने जयपुर से मुंबई जा रहे हो और आपको कुछ एक्सपेंस लग रहा है तो ड्रीम 11 में भी जाते क्या नहीं एक तो एक सर्वर लैम्बोर्गिनी लेने मंजू एंड कंपनी एक लॉगिन कितना करना चाहिए तो कंपनी की company is entitled to certain discounts. Given materials. So welcome us. I'm sorry. It has an uncertainty. Purpose is sees the pipeline. One of the limits is the same. Music will take me away. हाँ तो असेसिंग ऑफिसर उसको क्लियर करना चाहता है ऐसा कैजुअल इनकम मतलब सेक्शन 15 दी थी तो अगर कंपनी सोचती मतलब बिजनेस है लॉटरी टिकट बेचना है लॉटरी लग गई तो लीगल हेड में जाना चाहिए तो इसका अब क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वेदर इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईओ कोर्स अंडर कैजुअल इनकम और अंडर द हेड एबी. इसका आंसर है टैक्सेबल अंडर द आईओ कोर्स क्योंकि इसको लॉटरी डिपार्टमेंट में बोलता है कि भाई आपके लॉटरी आपके मानते हैं कि आपके उस फॉर्म में लिखिए क्या बोलते हैं ठीक लेकिन द रिसीट ऑफ प्राइज मनी इज नॉट इन कैपेसिटेड लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होल्डर ऑफ द लॉटरी ये सब लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऐसे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर तो ये कर देंगे तो हमारे टिकट्स बहुत एक पेज बचेगा तो इससे in the capacity of lottery distributor but not as a holder of the lottery ticket on the lottery therefore it will taxable in the provision section 115 BB subject the annual salary में मानेंगे. Interest received on compensation enhanced compensation deemed to be income in the year of receipt and taxable under the IM clause. अपन को भी इंटरेस्ट मिलता है enhanced compensation लेकिन रहेगा ठीक होगी enhanced compensation तो उसकी वो डी के अंदर उसका जो इंटरेस्ट मिलता है enhanced compensation का वो डीम को टैक्सेबल होगा जिस ईयर में पब्लिक इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर. मोबाइल बीकूबाई बालाबाई वर्सेस आईपीएल The petitioner Mobile Bikubai Balabai had his agricultural land acquired for a public purpose under the Land Acquisition Act. The reference was awarded enhanced compensation, including an additional amount under Section 23(1)(a) of the Act. The total interest payable amounted to 20,74,157. The income tax officer TDS Surat deducted our TDS of ₹2,07,416 from this interest amount. The petitioner applied for certificate under Section 197 of the Income Tax Act for nil TDS, but the application was rejected on the ground that interest was taxable under Section 56(2)(a), read with Section 57(4) of the Income Tax Act. Agreed by the decision, the petitioner approves the court. मतलब इसमें क्या हुआ कि एक एग्रीकल्चर लैंड था जो पब्लिक ने अक्वायर कर लिया उसके ऊपर उस पर इनहैंस कंपनसेशन मिला इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट के साथ अंडर सेक्शन 23 बनने के अंदर जिसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है 20,74,000 का जिसमें टीडीएस प्रोफेसर बोलता है 2,07,000 का तो टीडीएस कटना चाहिए पर पेटिशनर अप्लाई करता है नील टीडीएस की तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है ऑन द ग्राउंड दैट इंटरेस्ट वाज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(a) ऑफ द एक्ट. अब इसमें बताने के लिए इनहैंस कंपनसेशन को तो सॉरी जो इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कंपनसेशन अंडर सेक्शन 28
ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको कैपिटल गेन मानेंगे या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रीड करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो अपन को इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट जो मिलता है वो मिलता है फॉर द इनहेंस वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड की वैल्यू बढ़ने पे, ना कि फॉर द डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ लैंड। तो अपन इसको टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड नॉट अंडर द हेड आईएफओएस। पर अगर ये इंटरेस्ट हम लोग सेक्शन 34 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट में मिलता, वो होता है डिले इन मेकिंग पेमेंट आफ्टर द कंपनसेशन अमाउंट टू डिटरमाइन, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड आईएफओएस। Advance forfeited due to failure of negotiation for transfer of capital asset to be taxable as income from other sources। ये फाइनेंस एक्ट 2014 to 15 में आ गया था कि प्रायर टू ए बाय 2015 to 16 अगर कोई कैपिटल एसेट है जिसको बेचने का एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट मटेरियलाइज नहीं हो पाता, तो अपन जिस साल वो कैपिटल एसेट बेचेंगे उस साल में से वो जो एडवांस अपन को मिला था उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे। पर विद इफेक्ट फ्रॉम ए बाय 2015 to 16 अगर कोई एडवांस मिला है और वो कैपिटल एसेट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाता, तो अपन उसको उसी ईयर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में बताएंगे प्रॉपर्टी कब बिके उसका क्या होगा। इसलिए अब ये लिया है कि जिस साल वो एडवांस मिलेगा उस साल अपन उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। Any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be subject to tax in the hands of recipient under section 56 to 10। sum of money, अगर अपन को कोई सम ऑफ मनी मिलता है विदाउट कंसिडरेशन में, तो एग्रीगेटली उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू फॉर सम इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्रीगेटली मतलब पहले 20,000 मिलते हैं, बाद में 20,000, फिर 20,000, 60,000 मिलते हैं तो भी वो टैक्सेबल है। इसलिए 20,000 अलग अलग बाद में मिल रहे हैं तो 50,000 की वैल्यू एक्सीड नहीं कर रहा है, इसको नहीं होंगे टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होंगे कि वो एग्रीगेट तो 50,000 से ऊपर ही होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर आप अगर इन्वॉल्व प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड आईएफओएस। पर अपन को बहुत एडुकेट कंसिडरेशन मिल रही है, तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनका डिफरेंस 50,000 से ऊपर होना चाहिए और जो अमाउंट मिला है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड आईएफओएस। इसमें अपन प्रॉपर्टी वाइज कंसीडरेशन देखेंगे, ना कि एग्रीगेटली, मतलब हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग देखेंगे। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट वर्सेस रजिस्ट्रेशन, अगर अपन को डेट ऑफ एग्रीमेंट लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ एडवांस के फॉर्म, बट वो एडवांस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। अब ईसीएस क्या होते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, स्नैप, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मूव जो आजकल यूज में है, क्यूआर कोड। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अदर देन इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर अपन को विदाउट कंसीडरेशन मिलती है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी, अगर सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल एसेट की अगर 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मिलती है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसीडरेशन गिवन बाय अस, अगर 50,000 से ज्यादा होता है तो टैक्सेबल होगा। पर इस सेक्शन ओनली टू स्पेसिफाई प्रॉपर्टी व्हिच आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ द रिसिपिएंट पे होगा एंड नॉट ऑन स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमर स्टोर ऑफ एनी बिजनेस रेसिपिएंट। Therefore, only transfer of capital asset without consideration or for inadequate consideration will affect the provision of 56 to 10। हम मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन, shares and security, jewelry, archaeological collections, drawing, painting, sculpture, any work of art or bullion। It also includes virtual digital assets like crypto coin, dog coin, etc। मतलब कि अगर आप बाइक, कार, फोन ये सब किसको भी देते हो कितने भी रुपए के फ्री के अंदर भी विदाउट कंसिडरेशन भी, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं है, इसलिए इन पे कोई टैक्स, इस पे कोई शेयर होल्डर को टैक्स, सॉरी इस पे कोई इंडिविजुअल को टैक्स इफेक्ट नहीं होगा। नॉन एप्लीकेबल 56 टू 10, अगर अपन को 56 टू 10 में पैसा इन लोगों से मिला है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रॉम रिलेटिव्स ऑन मैरिज ओकेशन, तो इसमें मैरिज ओकेशन लिखा है ना कि एनिवर्सरी, अगर कोई एनिवर्सरी में पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, पर अगर मैरिज ओकेशन मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। विल और इनहेरिटेंस ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ फ्रॉम लोकल अथॉरिटी कवर्ड इन सेक्शन 1020 from educational or medical institution covered under section 1023C, from registered trust covered under section 12A, 12AA, 12AB of the income tax act। अगर इनसे कुछ पैसा मिलता है, फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट को किससे पैसा मिलता है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट होता है, तो चाहे तो फिर कितने रुपए मिली, तो किससे मिले, ट्रस्ट को मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एक इंडिविजुअल, उनके स्पाउस और इंडिविजुअल उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो अपने लीनियर असेंडेंट वो भी कवर है, और इंडिविजुअल और उनके स्पाउस के सन, चिल्ड्रन वगैरह जो लीनियर डिसेंडेंट हो गए। अब मेरे सॉरी इंडिविजुअल और उनके स्पाउस के सिबलिंग्स और उनके भी स्पाउसेस और इंडिविजुअल स्पाउसेस के रिलेटिव्स जो कि बहुत क्लोज हैं,
तो वो रिलेटिव डेफिनेशन में कवर है, वो एचयूएल भी इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ एचयूएल, वो रिलेटिव डेफिनेशन में आएगी। कंपनसेशन रिसीव भाई इसको ऐसे बोलता है बहुत ज्यादा ऊपर तो उपयोग नहीं होगा। अरे एग्जांपल चाचा से भतीजा लेते हैं लेते हैं सर तो इसका जवाब है मतलब ऐसा है कि अब मैं कैसा है, मेरे चाचा से तो अगर मैं अपने चाचा से दे रहा हूँ ना रुपये पैसा, तो मेरे को तो एग्जाम है ना, लेकिन अगर चाचा मेरे को दे रहे हैं ना तो ये है ये देखा तो पेमेंट पर भी वो कवर है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है यार ये एग्जाम्पशन का वो नहीं है यही सर ये इसका इन्वेंशन रेट 80 तक है। जितने अमाउंट तक टैक्स नहीं है उसके ऊपर टैक्स है ये देखो और क्या तो भी लिमिट है तो बताओ बस से ले सकते हैं नहीं ले सकते मैं ले सकता हूँ हुआ, लेकिन हुआ इन the compensation received in connection with employment termination under section 56 to 11. अगर compensation employer से मिलता है तो taxable होता है under section salaries है। पर अगर मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस कंपनी से, अगर मैं नौकरी चली गई तो इंश्योरेंस कंपनी को 4 करोड़ रुपए देगी, तो अगर मान लो मेरी नौकरी चली जाती है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। जाने को चार सर कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, सर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कर ली घाटे का चिप तो अगर आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है पैसा जो कि अपना एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा अंडर द हेड आईएफओएस स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। तो अपन लोग जो यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से कुछ पैसा मिलेगा वो आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। तो उसका कैलकुलेशन फार्मूला है a minus b minus c, where a is equal to aggregate of sum distributed by business trust with respect to such unit during the previous year or during any earlier previous year or years to such unit holder। तो उनको पैसा मिलता है इस साल या फिर किसी प्रीवियस ईयर में, तो such unit on the date of distribution or some for the date of distribution of some or to any other unit holder who held such unit at any time prior to date of distribution of dividend, which is अब इसमें तीन चीजें कवर होंगी, नॉट द नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 1023 एफसी और रेंटल इनकम रेफर टू इन सेक्शन 10 सबक्लॉज 23 एफसीए एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 115 यूए सबसेक्शन 2। माइनस कर देंगे जो मैंने अमाउंट पे किया था उस ट्रस्ट पे यूनिट्स को इशू करवाने के लिए माइनस अमाउंट चार्ज टू टैक्स अंडर डिस्क्लोज इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। Some received including the amount allocated by way of bonus under a life insurance policy other than a ULIP and even insurance policy which is not exempt under section 10D 10 under section 10 subclause 10D। या तो 56 to 13 में भी जो भी अपना पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है जो कि अपने इन एग्जम्पशन में कवर नहीं होता वो तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर मान लो अपन को कोई सॉरी अगर एम्प्लॉय को कोई पैसा मिलता है एम्प्लॉय से इन द फॉर्म ऑफ पीएफ सुपर एनुटेशन फंड और एनी अदर फंड, तो वो पहले एम्प्लॉय की इनकम बनता है अंडर द हेड आईएफओएस, पर बाद में वो उस अमाउंट पे रिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर वो विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 36 बैंक में इनको डिपॉजिट करवा देता है। तो हाँ अब अगर मेरा लैटिंग और हायर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का बिजनेस नहीं है फिर मैं हायर पे लैट कर रहा हूँ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, सो दैट वुड आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। अगर लाइटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर मेरा मेन पर्पस है पर वो मैं बिल्डिंग की लाइटिंग ऑन हायर कर सकता हूँ, सो दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सीआईटी वर्सेस श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड a case study है 2018 में। श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड had deposited share application money in a separate bank account and required by law and earned interest of rupees 1 crore 71 lakh. Initially this interest was declared as income from other sources. However, the company later claimed that its interest should be set off against the expenses incurred for the publication। मतलब कि ड्रामा मल्टीटेक लिमिटेड को शेयर एप्लीकेशन मनी में पैसा मिलता है
तो वो सेपरेट बैंक अकाउंट में एज रिक्वायर्ड बाय लॉ डिपॉजिट करवा देते हैं और 1,71,00,000 का इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो इनिशियली तो कंपनी बोलती है कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, पर बाद में कंपनी बोलती है जिनको पैसा लगाया ना पब्लिक इशू करवाने में, मैं उससे ये सेट ऑफ कर लेती हूँ। तो इशू ये है कि इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक एलिजिबल फॉर सेटअप अगेंस्ट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस or should such interest be subject to tax under the head income from other sources? तो इसका डिसीजन है कि the assessing company was statutorily required to keep the share application money in a separate account till the allotment of shares was completed. Part of the share application money will normally have to be returned to unsuccessful applicants, and therefore the entire share application money will not ultimately be allocated by the company. मतलब कंपनी ने कोई खुद की मर्जी से पैसा बैंक में नहीं रखा, उनको लॉ बोलता था कि ये पैसा बैंक में रखो, तो उन्होंने रखा है। The interest fund was inextricably linked with requirement of raising share capital. Any surplus money deposited in the bank for the purpose of earning interest is liable to be taxed as income from other sources. अगर कोई भी अपना सरप्लस पैसा बैंक में रखते हैं तो उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैक्स लग जाता है। Here the share application money was deposited with the bank not to make additional income but to comply with the law. The interest accrued on such deposit is merely incidental. Moreover, the issue of shares relate to capital structure of the company and hence expenses incurred connection with the issue of shares are to be capitalized. Accordingly, the accrued interest is not liable to be taxed as income from other sources. The payment eligible to be settled against public issue expenses. मतलब जिनको तो पैसा मिला था वो इंटरेस्ट का उन्होंने कोई कम था इंटरेस्ट अर्न करने का, उनका पर्पस था लॉ से मैच करने का, जहां तक कि जो पार्ट होगा पैसा तो शेयर एप्लीकेशन मनी का जिन अलॉटमेंट का अलॉट नहीं होता, आप कभी आईपीओ लगाते हैं तो वो नॉन अलॉटमेंट का मैसेज आ जाता है, वैसे ही वो सब तो रिटर्न ही करना पड़ता है। तो उन्होंने सिर्फ लॉ की रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए रखा था, ना कि इंटरेस्ट अर्न के पर्पज से। इसलिए उसमें पर्पज देखते हुए उसको पब्लिक इशू एक्सपेंसेस सेटअप कर दिया गया, ना कि टैक्सेबल हुआ अंडर द हेड आईएफओएस। तीनों इंश्योरेंस पॉलिसी इसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। अगर पैसा एम्प्लॉय को मिलता है तो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीटी, अगर पैसा एम्प्लॉय को मिलता है तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज है, और अगर पैसा एम्प्लॉय के अलावा किसी थर्ड पर्सन को मिलता है, मतलब जो किसी एम्प्लॉय सर्विस में नहीं है, तो ऐसी इंडिविजुअल्स ने पॉलिसी ले रखी है तो उसका पैसा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड आईएफओएस। रेसिडुअल इनकम, एनी इनकम chargeable to tax under the act but not falling under any of the act shall be chargeable to under the act income from other sources. जो कोई इनकम टैक्सेबल तो होनी चाहिए पर किस साइड में होनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा, तो वो इनकम किस साइड टैक्सेबल होगी। जैसे डायरेक्टर शूटिंग फीस सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलएस, तो एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है will not be chargeable to income tax under the salary but will be chargeable under the income from other sources under section 56. Interest from non-SLR securities of bank. अब पहला सवाल what are non-SLR securities? तो बैंक हर एक कमर्शियल बैंक को एक एसएलआर रेशियो मेंटेन करना पड़ता है उसके साथ, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब अगर बैंक उस एसएलआर रेशियो ज्यादा की सिक्योरिटीज रखता है ना तो उनको नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो अगर उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक ने अर्न किया है ऑन द नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड आईएफओएस। अब इसका आंसर ये कि द सीबीडीपी क्लैरिफाइड दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंकिंग कंसर्न आर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंक का तो बिजनेस है सिक्योरिटीज रखना देना ये सभी, इसलिए therefore the income arising from such investment is attributable to the business of banking facility falling under the head PGBP. So ये अपने इनकम PGBP हेड में टैक्सेबल होगी क्योंकि ये बैंकिंग का बिजनेस बैंकिंग का कंसर्न ही होता है कि सिक्योरिटीज देना देना, इसलिए therefore it will be taxable under the head PGBP and not IFRS. डिडक्शन अलाउड है। अब अपन को जो इनकम होती है उसमें कुछ डिडक्शंस भी अलाउड अपन को जाती है। डिविडेंड और म्यूचुअल फंड, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन 1025, इन पे अपन जो डिविडेंड अर्न करते हैं उसमें अगर वो डिविडेंड अर्न करने के लिए अपना शेयर्स खरीदते हैं वो अगर अपन लोन पे लेते हैं तो डिविडेंड के अमाउंट का 20% तक अपन को इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड है। लेकिन इसमें एक है कि नो डिडक्शन in respect of any expenditure is allowed in case of being dividend arise on account of buyback of shares by domestic companies. Buyback of shares by domestic company को इसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो पूरा डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो अपन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिलता है उसमें से अपन को कमीशन और रेम्यूनरेशन जो अपन उस इंटरेस्ट को रियलाइज करवाने के लिए लेते हैं उसका डिडक्शन अलाउड है। अगर अपन उन सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए कोई इंटरेस्ट कमीशन दे रहे हैं उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है, पर अपन बैंक को दे रहे हैं कि कमीशन दे रहे हैं
मेरा कमीशन सॉरी मेरा इंटरेस्ट कमीशन दे रहे हैं या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं बैंकों को, तो वो अलाउड है। तो इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत पहले बता कि एम्प्लॉयर को पीएफ का सुपर एजुकेशन फंड का इस फंड का पैसा एम्प्लॉय से मिलता है। अगर वो एम्प्लॉयर को पहले पैसा मिल जाता है तो एम्प्लॉयर की इनकम मिल जाता है। पर अगर एम्प्लॉय विद इन द टाइम ऑफ ड्यू डेट अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 36(1)(5)(a) में अगर वो डिपॉजिट करवा देता है टाइम टू टाइम टाइमली तक, तो वो इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है फुल अमाउंट का, जो भी इसका पीएफ का सुपर एजुकेशन फंड का या फंड का पैसा बनता है। और हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर अपन हायर पे लैंड करते हैं मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, तो इनकम बनती है आई कोर्स में। तो वो 3 डिडक्शंस अवेलेबल है। एक तो इंटरेस्ट का जो मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का होता है, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं अगेंस्ट मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, एक तो अपन डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, एक तो अपन डेप्रिसिएशन अपने मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का लगता है। अदर डिडक्शन अपनी जो भी इनकम है उसके अगेंस्ट डिडक्शन अलाउड है, बट द डिडक्शन शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, इट शुड बी इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, उसका डिडक्शन अलाउड है। और जो इंटरेस्ट और इनहैंस कंपनसेशन मिलता है उसका डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम वुड बी अलाउडेबल। मतलब जो भी अपनी इंटरेस्ट होगी इनहैंस कंपनसेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख होती है, उसमें 50,000 का अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते। फैमिली पेंशन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। अब फैमिली पेंशन क्या होती है? मंथली रेगुलर पेमेंट पेपर बाय एन एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। अगर डेथ के केस में कुछ पैसा एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय की फैमिली को, तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। अब फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 इन द केस ऑफ टोटल टैक्स रिजीम और 25,000 इन द केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जो कि अब वैसे तो अपनी दो नहीं वाले की बने 15 टीएससी वाले। तो 1/3 और 15,000 इन द केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम और 21,000 इन द केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, व्हिच एवर इज लोअर द डिडक्शन चलता है। अगर if a person is in armed force and is dies during the operational duties और उनके विडो या चिल्ड्रन को कोई पैसा मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा फैमिली पेंशन का पैसा। और कोई पर्सन सर्विस में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनको परमवीर चक्र, वीर चक्र, अगर कोई भी ऐसा कोई अवार्ड मिलता है ना, तो उसके लिए भी ये फैमिली पेंशन टोटली एग्जेम्प्ट होती है। डिडक्शन नॉट अलाउएबल इन द केस ऑफ एसएससी, any personal expense of the assessee, under the personal expense, any interest chargeable to tax under the act which is payable outside India on which TDS has not been paid or deducted। मतलब कोई भी इंटरेस्ट है जो चार्जेबल टू टैक्स है पर उस पे अपने टीडीएस नहीं लगता, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। Any payment taxable of salaries in India if it is payable outside India unless tax has been paid there or deducted as source। ये भी कोई बात की कोई पेमेंट taxable है as salaries in India, तो उसको भी अगर टीडीएस नहीं करता तो उसका डिडक्शन अलाउएबल नहीं होगा। Any expenditure in respect of which payment is made to a related person to the extent the same is considered excessive or unreasonable by the assessing officer having regard to fair market value। अगर अपन कोई पेमेंट रिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं लेकिन वो अनरीजनेबल है ना, हैविंग रिगार्ड टू ए, बताता है कि बस भाई आपको इतनी सैलरी नहीं उसकी इस बंदे की, पर आप उसको दे रहे हो, तो जो भी अपना डिसअलाउ हो जाएगा, डिडक्शन उसका अलाउड नहीं होगा। पर अगर कैश में दे रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 10,000 पर इन 10,000 टू अ पर्सन ड्यूरिंग अ डे, अदरवाइज प्लान बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू द ईसीएफ और बैंक अकाउंट। अगर ईसीएफ और बैंक अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इन मोड के अलावा इसको भी पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 10,000 इन अ डे, तो वो भी अलाउडेबल नहीं होगा। दिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर अपन टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड, तो इसमें हमको टीडीएस काटना होता है। तो इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। इन केस असेसी fails to deduct the whole or any part of tax on any such sum but is not deemed as SLC in default under the first provided to section 201 by the reason tax at pay। अगर अपना पे है ना, अगर अपन टैक्स नहीं काटते तो भी अपन डिडक्शन नॉट मतलब डिसअलाउ नहीं होगा। अगर अपना पे है वो अपनी ड्यूली अपनी मर्जी की इनकम में वो इनकम डिक्लेयर कर देता है, फिर ड्यूली टैक्स पे कर देता है। तो डिडक्शंस फॉर कैजुअल इनकम एंड हॉर्स रेस। Casual income including lotteries, crossword puzzle, races, card games, gambling, इनके ऊपर अपन को no deduction is allowable in respect of any expenditure or allowance। ना बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, ना ही कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही 87A का, ना ही चैप्टर 6 का कोई बेनिफिट मिलेगा कैजुअल इनकम के ऊपर। बट इफ द इनकम इज फ्रॉम owning and maintaining horse races, तो अपन को उसके एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर अपन कोई उस साल कोई स्टेक मनी अर्न भी नहीं करते, अपना फोर्स कुछ जीत भी नहीं पाता दांत लगने के बाद भी अपन कुछ अर्न नहीं करते, तो डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ तक अगर अपना लॉस आ जाता है उस डिडक्शन के बाद
तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74 जो कि आने वाले सेक्रेटरी क्लासेस में कवर हो जाएगा। Deemed income chargeable for trust. The provisions of section 41(1) are made applicable so far as may be to the computation of income under the head. Accordingly, where deduction has been made in respect of loss, expenditure, or liability, and subsequently any amount is received where benefit is derived in respect of said expenditure incurred or loss or trading liability allowed as deduction, then it shall be deemed as income in the year in which the amount is received where benefit is accrued. मतलब मान लो अपन तो बैड डेट्स हो गए, अपने अंदर डिक्लेरेशन क्लेम कर लिया, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो वो जिस ईयर में बैड डेट्स रिकवर हुए ना, deemed to be income in the year in which the amount is received or benefit is accrued. Thank you. Because so what we have to do is explain that. We have to do that. You don't know what I'm doing.